Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, haq maujud, namaskar, paranam, sat sri akal. Aloha and welcome to class number 28 of Sindhi Language Learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, which is initiated from our Karachi camp office, the Karachi camp office of Sindhi Language Authority. Sindhi Boli Jo Bakhtiar Idara. This is 5:03 p.m. in Pakistan, 5:33 p.m. in India, 4:03 p.m. in United Arab Emirates, 3:03 p.m. in Hijaz al-Muqaddas, Bhalipar mein Australia ki treatment dhyan, yani in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:03 p.m. in London and rest of the parts of UK. This is 7:03 a.m. in Washington, D.C., New York, and Toronto, east coast of the United States of America, और उसके साथ साथ कनाडा के जो इलाके हैं जहाँ पर टाइम जोन सेम है. This is 9:03 p.m. in Japan. This is 11:03 p.m. in Australia and 1:03 a.m. in New Zealand for the next day. यानी February 7th. हमारे यहाँ February 6 है. 6 फरवरी में हम सांस ले रहे हैं. तो good evening to all those who are joining us mostly from Pakistan and then rest of the parts of South Asia or Middle East or rest of the parts of mostly parts of Asia, Central Asia and Far East. And a very good evening, good morning to those who are joining us from United States of America, East Coast of United States of America. There are 6 time zones. We are talking about only one time zone, which is in the which denotes the capital of the United States of America and its vicinity. And then those who are joining us from most of the parts of Europe and United Kingdom, the United Kingdom, UK, जो कि अब ज़ाहिर है कि ब्रेक्जिट डील के बाद जो है वो यूरोप का हिस्सा नहीं रहा, उससे अलग है, उससे अलहदगी इख्तियार कर ली उससे, तो वहाँ पर a late good morning और an early good afternoon. So thank you very much. आप सबने ज्वाइन किया हमें. And now jumping to the first slide of our lesson, of our module, of our class, which always shows that what is the name of the course and what is it about and what is the date and which is the class number. So this is Sindhi Language Authority, Sindhi Boli Jo Bakhtiar Idaro, Muqtadara Sindhi Zuban, Sindhi Language Learning Course. This is the name of the course is Sindhi Language Learning Course, Sindhi Boli Sikhya Course Online. You are batch number 1. You are fortunate to be batch number 1. This is the logo of Sindhi Language Authority. This is the logo of Sindhi Boli Jagarta Muhim, the campaign of dissemination of Sindhi language, which shows the slogan of Sindhi Padho Sindhi, Likho Sindhi, Galayo, read Sindhi, speak Sindhi, write Sindhi and speak Sindhi. And this is the logo of Hukumat Sindh, Government of Sindh, since we are the organization working under Government of Sindh. So this is class number 28, and who will tell me that what is the date and the day in Sindhi today? Who is number 1 participant of the class to volunteer? Muhammad Imran Zakaria Sahab. बताइए, पढ़ के सुनाइए. वो नहीं कीजिएगा, 2024 नहीं कीजिएगा. वालेकुम सलाम मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब. मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, तव्हांजी तबियत सेहत कीअं आहे? मां सट आहे. तव्हां ॿुधायो सर? ठीक ठाक. या मां छा आहियां? बताइए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए. ये गलियां ना घुमाइए मुझे. मां सटो आहे. सट्टो आहियां. मां सट्टो सट्टे पे आहे. सट्टा, सट्टे पे सट्टा. जी. सट्टा तो गुनाह है भाई. सठो. सुठो आहियां. अच्छा, मां सुठो आहियां. ओके, मां सुठो आहियां. मां कहिए, सुठो आहियां. क्लियर कहिए, मां सुठो आहियां. कहिए, मां सुठो आहियां. मां सुठो आहियां. हाँ, मां सुठो आहियां. इतना क्लियर हो कि कोई पड़ोस वाले से ना पूछे कि भाई इमरान भाई क्या कह रहे हैं. आप इतने क्लियर हो. मां सुठो आहियां. तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? कैसे कहेंगे? मां सुठो आहियां. ठीक है. उसके बाद कहना, आप मुझसे पूछें कि तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो. तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुल ठीक आहियां. इमरान ज़करिया साहब, पढ़ के सुनाइए ये डे और डेट. डे जो है सर अनारो 6 नारो नहीं है, नून नहीं फरवरी. है. नून नहीं है. नून नहीं, ये है. ये को नून से रिप्लेस ना करें. अंगारो, अंगारो बोले. बोलिए. इनेरो. अंगारो. अनारो. अंगारो. अनारो नारो 6 नहीं. नो 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 फरवरी. नो 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 नो. दिस इज नॉट नून.
This is not noon. This is nye, nye. This is nye. Angaro. नारो No, you are saying it like नारो no. Sorry. Date पढ़िए. Date पढ़िए. 6 फरवरी 2024 ईस्वी 6 February. Sorry. This is 6 February. Say it like 6 February. 6 फरवरी 2024 बे नहीं है, बे ईस्वी नहीं है. 2024 है. 2024 है. 2024. Say it like 2024 2024. 3 दफा कहिए 2024. 2024 3 दफा कहिए. 3 दफा कहिए. Say it thrice. Okay. Thank you. Thank you very much. Who's the next? Who is the next to read this day and date? Be quick because we have a lot to share with you. जलील सर मोहम्मद जलील साहब तव्हां कीअं आहियो? मुंहिंजो हाल बिल्कुलु ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. अलाह करे तव्हांजो हाल बिल्कुलु ठीकु हुजे. जी, रीड इट सर. रीड इट लाउड. अंगारो 6 फरवरी 2024. अंगारो गुड. 6 फरवरी हम्म 2024 हाँ, 24 नहीं, 24 है. 24 है. ठीक है. अच्छा, अब 2024 इसको अब रवानी में पढ़ के सुनाए. ऐसा ना लगे कि कोई लर्नर गाड़ी चला रहा. अब इसको रवानी में पढ़े. अंगारो 6 फरवरी 2024. अंगारो 6 फरवरी 2024. 24 नहीं है, 24 है. 24 है. अच्छा, अंगारो 6 फरवरी 2024. हाँ, आप इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे कोई लर्नर गाड़ी चला रहा होता है और पीछे वाला समझ रहा होता है कि ये सीखा हुआ नहीं है. तो इसको रवानी से कौन पढ़ के सुनाए? थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इनपुट. बहरहाल ये इसी से ही हम सीखेंगे. मोहम्मद जलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया. हु विल रीड इट विद रवानी? कम ऑन, हरी अप. फैजान अहमद साहब. फैजान अहमद साहब. अंगारो 6 फरवरी 2024. सॉरी सर, से इट अगेन. दिस इज 6 फरवरी. 6 फरवरी. 6 फरवरी. से इट अगेन. अंगारो 6 फरवरी 2024. बेटर. थैंक यू. शादी असरार साहबा. अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां. तव्हां ॿुधायो? ठीकु आहे? ठीकु आहे. तव्हांजी तबियत नासाज़ हुई, हाणे तव्हांजी तबियत कीअं आहे? अल्हम्दुलिल्लाह सर. माशाअल्लाह. जी, पढ़ी ॿुधायो. इहो जेको ॾींहुं ऐं तारीख़ लिखियल आहे. अंगारो 6 फरवरी 2024 ईस्वी. अच्छा, ये फरवरी को थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ पढ़िए. फरवरी. से इट अगेन. पूरा पढ़िए दोबारा. फरवरी. पूरा दोबारा पढ़िए. अंगारो 6 फरवरी 2024 ईस्वी. गुड. थैंक यू वेरी मच इमरान ज़करिया साहब, मोहम्मद जलील साहब, फैजान साहब, शाज़िया असरार साहिबा कि आपने इसको अटेम्प्ट किया. अटेम्प्ट करना बहादुरी की बात होती है. सो वी बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट. अल्लाह तबारक तआला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो कि हम सब पर इतना मेहरबान है कि जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते. जितना हम दुआओं में नहीं मांगते उससे कहीं ज्यादा वो हमें अता करता है. उन्हें अल्लाह बाजार जलाल से शुरू करूँ था. दिस इज द पोइट्री ऑफ हजरत शाह लतीफ भटाई. अवल अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो साराह सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान दी. So we are about to start our first segment, but is there anybody to guide me? What did we do yesterday? कल हमने क्या किया था? कोई हमें बताएगा, कोई आगाह करेगा, कोई रिकैप देगा मुझे कि कल ओवरऑल हमने क्या किया था? शादी असरार साहिबा. सर सबसे पहले तो हमारा जो रेगुलर सेगमेंट होता है अज्जो लफ्ज और अज्जो जुमला वो किया था. और उसके बाद आपने पोस्टर असाइनमेंट का रिमाइंडर करवाया था. ओके. उसके बाद कब सबमिट करवाना है? उसके बाद आपने कब सबमिट वो नेक्स्ट संडे करवाना है हमें 12 बजे से पहले. ओके. और उसके बाद हमने ऊजो चार्ट करवाया था. ऊजो चार्ट का पहला दूसरा तीसरा मरहला कौन सा मरहला किया था? पहला मरहला किया था. ओके. थैंक यू शादिया साहिबा, बड़ी मेहरबानी तमांजी नवाजिश.
ओके जी, तो कल हमने ये सब कुछ किया था। ऊ ऊ का जो चार्ट है उसका पहला मरहला किया था, रेगुलर सेगमेंट्स किए थे, और हमने जो है वो जो असाइनमेंट है चार्ट वाली, इसको रिमाइंड करवाया था। आखिर में कुछ और भी किया था। हु विल रिमाइंड मी? बिल्कुल आखिर में कुछ और किया था। हु विल रिमाइंड मी? रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट वाज देयर। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। सर हमने वो रिश्तों के जो नालों थे उसको मुकम्मल कराया था, पांचवा और लास्ट सेगमेंट था। थैंक यू। आई थिंक आप नालो कह में रहे हैं। नाला, नाला, नाला इज जमा। नाला, नालो इज वाहिद, नाला इज जमा। सर हमने एक किया था या ज्यादा किए थे? एक से ज्यादा किए थे। सर एक से ज्यादा किए थे। हाँ, तो रिश्तन जा नाला होगा, रिश्तन जा नाला। ओके, राइट, रिश्तन जा नाला। जी सर। थैंक यू वेरी मच। सर जी एक फरमाइए। रिक्वेस्ट और है कि सर हमारे मोबाइल के कीपैड में ये जिस तरह उर्दू हमारी आती है या इंग्लिश आती है हम लिख सकते हैं, सिंधी किस तरीके से आएगी जिस तरह आपके मोबाइल में आती है हमारी मोबाइल में भी आए? क्योंकि टेस्ट लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, ना अलिफ आता है ना दाल आता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है सर। सर उसके तो लिए, ये किस तरीके उसके लिए से? एक ऐप होती है, उसका नाम है इजी सिंधी। इजी सिंधी एक ऐप होती है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उसका लिंक शेयर कर दे आपके साथ। जो गूगल उसका प्ले स्टोर का जो लिंक है वो शेयर कर दें, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप उसी एप्लीकेशन में उर्दू भी लिख सकते हैं, सिंधी भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास उर्दू की कोई और एप्लीकेशन है तो उसको अगर रिप्लेस कर दें तो इजी सिंधी में एक उर्दू का कीबोर्ड भी है और सिंधी का कीबोर्ड भी है, तो उसमें आप इजीली लिख सकते हैं। तो उससे आप उसमें जाएंगे, जब उसको एक्टिव करेंगे तो आपका गूगल का जो कीबोर्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा और सिंधी का कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा जब आप सिंधी लिखना चाहेंगे तो। राइट सर, तो वो एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा थैंक आपको। यू सर, बहुत मदद। वेलकम, वेलकम। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे इस क्लास के बाद शेयर कर लें, उसका लिंक शेयर कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब जो पार्टिसिपेशन हो आपकी जानिब से, कोशिश हो कि जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट किया है उसके अलावा दूसरे लोग पार्टिसिपेट करें। इमरान जकरिया साहब, जलील साहब, फैजान साहब, शाहिद सराज साहब के अलावा कोई मुझे जवाब दे कि कल का लफ्ज हमने क्या किया था। व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे? कल क्या था? कल का दिन। अस्सलामुअलैकुम आयशा, सर, मोहम्मद हमजा। जी मोहम्मद हमजा साहब। सर कल का लफ्ज हमने मोहम्मद हमजा साहब कंदो ताकि आयो। कांटा। मोहम्मद हमजा साहब ताकि आयो। सर मां ठीक आया तव्हां ॿुधायो सर? मां भी बिल्कुल मां ठीक ठीक आहियां ठाक है। सर, तव्हां ॿुधायो? अल्लाह जो शुक्र है। कल का लफ्ज, कल जो लफ्ज कहिड़ो हुयो? सर कल जो लफ्ज हुयो कंदो। कंदो। कंदो नहीं है, ये कंडो है। कंड ड ड कं, डो, कंडो। कंडो, सॉरी, कंडो, कंडो, कंडो। कंडो का बस मतलब क्या है? कांटा। कांटा। ओके, कभी लगा है, चुभा है आपको जी सर बिल्कुल। फूल तोड़ते हुए? नहीं, चलते हुए सर। अच्छा, चलते हुए। अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। आयशा खान साहिबा, यू रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट इज द प्लूरल ऑफ दैट कंडो। कंडो को प्लूरल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आयशा खान, ताकि आयो। सर मां सुठी आहियां, तव्हां कीअं आहियो? मां बि ॾाढो सुठो आहियां, मां तव्हां खां वधीक सुठो आहियां। जी आयशा खान साहिबा, सर व्हाट इज कंडा, कंडा? कांटे। कांटे। ओके, थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहिबा, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज आज का लफ्ज, कल का लफ्ज। एक चीज है जो सबसे पहले हमें, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो उसको नसीब होती है। इस दुनिया में आने के फौरन बाद जिस चीज की गर्मी और गर्मजोशी उसे नसीब होती है, जिसको, जिसमें उसको सुकून मिलता है, और जो उसका पहला यूं समझे बिस्तर बनता है, जो उसकी पहली आरामगाह बनती है इस दुनिया में, वो है माँ की गोद। राइट? कैन एनीबडी गेस के गोद को सिंधी में क्या कहते होंगे? खासतौर पर वो हमारे दोस्त के जिनकी सिंधी जो है वो आर लर्निंग सिंधी एज देयर सेकंड लैंग्वेज, जिनकी सिंधी मादरी जुबान नहीं है। कैन एनीबडी गेस? कोई बता सकता है कि गोद को सिंधी में क्या कहते होंगे? गोद, माँ की गोद, उसको सिंधी में क्या कहते हैं? लैप। लैप को क्या कहते होंगे? अगर यू हैव नो आइडिया, आई विल टेल यू। देयर आर टू वर्ड्स। एक लफ्ज तो ऐसा है कि जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है गोद के लिए, लेकिन पहले हम दूसरा वाला लफ्ज सीखते हैं जो कि प्योर हमारा सिंधी लफ्ज है, वो है हंज। हंज, लैप, गोद, झोली।
वो झोली किसी की भी हो सकती है, बाप की अब्बा की भी हो सकती है झोली, ठीक है, झोली यानी लैप। ये लैप जो है, ये इंसान सबसे पहले जब आता है तो माँ उसको गोद में उठाती है, राइट। इस दुनिया में आने के बाद अगर कोई पहला बिछोना, कोई पहला बिस्तर उसका बनता है, कोई पहिरियों विछाणो हुन जो बणबो आहे, जंहिंजी गर्मी हासिल करे इंसान ताज़गी हासिल कंदो आहे, पोइ दुनिया में हेॾा सारा कारनामा अंजाम ॾींदो आहे। यानी आइंस्टाइन से लेकर आइजक न्यूटन तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर दुनिया की तमाम तर हस्तियों ने सबसे पहले इसी लैब से, अपनी माँ की गोद से एनर्जी हासिल की होगी। तो उसको कहा जाता है हंज। आसान लफ्ज है, 3 हरूफ पर मुश्तमिल और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, 2 पदों पर मुश्तमिल। पहला जो है हे और नून पर मुश्तमिल है। हे नून जबर हन, जीम जबर ज, पहला हिस्सा हन, दूसरा ज, हंज। 1.5 पद पर मुश्तमिल है। हन पहला पद है, पहली आवाज है, ज आधी आवाज है, हंज, हंज। दिस इज अ फेमिनाइन वर्ड। गोद जैसे फेमिनाइन है, सिंधी में हंज भी फेमिनाइन है। माओ जी हंज, माओ जो हंज न, माओ जी हंज, ठीक है। उसका मतलब है गोद या झोली, विच मीन्स लैप। लिखा, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा HANJ, apostrophe A shows the जबर on the last letter, right? हंज, इसको बोला जाता है हंज। दूसरा लफ्ज मैंने कौन सा आपको बताया था, उससे बताने से पहले इसकी जमा बताता चलो। इसका प्लूरल होगा हंजू। हे नून जबर हन, जे वा नून गुना, दिस इज नून गुना, जे वा नून गुना पेश जू, 2 हिस्सों और 5 हरूफ पर मुश्तमिल। 5 हरूफ है, हे नून जे जीम वा नून, ये 5 हरूफ है इसके, ठीक है। 2 हिस्से, हन पहला हिस्सा, जू दूसरा हिस्सा। हन यानी 2 आवाजें, हन पहली आवाज पहला पद, जू दूसरी आवाज दूसरा पद, दिस इज द प्लूरल ऑफ हंज, राइट। तो ये होगा हे नून जबर हन, जे वा नून गुना पेश जू हंजू, मीन्स जमा। अगर कहें कि तव्हां टिन्ही मावरन, तव्हां ॿिन्ही मावरन जू हंजू शल आबाद थियन, अब दोनों माओं की गोदें अल्लाह हरी भरी रखे, अल्लाह हरी करे। तो इस सूरत में हंज को, इस सूरत में गोद को जमा की सूरत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हंजू। हंजू मीन्स जमा ऑफ हंज, मीन्स गोदें या झोलियां जमा में। लैप्स इन प्लूरल which will be pronounced as HANJOON, HANJOON, हंजू। हंजू मीन्स गोदें झोलियां, हंजू गोदें झोलियां जमा, लैप्स। इमरान जकीर साहब, ये क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि ये हंजू जो है, इसको हमारी जबान में जो है, ये आंख से जो पानी निकलता है कि इसके इंदी आंख का हंजू निगदा पिया, उसको भी कहते हैं सिंधी में या नहीं? सिंधी में भी कहते हैं, हिजर में हंजू नहार जा, मुखे एतरो नसार जा। लेकिन ये मैं उसके वो मायने इसलिए यहाँ पर बयान नहीं कर रहा कि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हंजू आंसुओं को, अश्कों को भी कहते हैं, और उसकी भी स्पेलिंग एज इट इज है। अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। हंजू अश्कों को भी कहते हैं, आंसुओं को भी कहते हैं जमा में। मुझे अखिन मां हंजू हारजन थ्यूं। हारजन मीन्स किसी लिक्विड चीज का गिरना। एक मशहूर गजल है सिंधी में, हिजर में हंजू नहार जा, मुखे एतरो नसार, मुझे इतना याद नहीं करना, और हिजर के मौसम में तुम आंसू नहीं बहाना। तो हंजू जो है वो पंजाबी में, सराइकी में और सिंधी में आंसुओं को भी कहा जाता है। तो आप इसको जमजन लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको कंफ्यूज करे तो फिल वक्त आप उसको साइड कर दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग इमरान जकीर साहब। ये पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में इस्तेमाल, बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स ऐसे हैं। मेरी अखियां हंजुआ, आप हंजुआ का लफ्ज आपने सुना होगा, मेरी अखियां बहावन हंजुआ, यानी मेरी आंखें बहाती हैं अश्क या आंसू, ठीक है। आंसुओं को, अश्कों को भी हंजू कहा जाता है। तो हंज इज गोद या झोली, और उसकी जमा है हंजू। दिस इज अ फेमिनाइन वर्ड लाइक गोद, ठीक है। लेकिन ये जो झोली आपने पढ़ा, ये आपने उर्दू में, ये झोली सिंधी में भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो झोली इस्तेमाल करना भी दुरुस्त है, लेकिन मैंने बेसिक इंडिजीनियस प्योर लफ्ज आपको बताया, दैट इज हंज। और झोली भी इस्तेमाल होता है। तो झोली इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंधी, इट इज ऑल्सो सिंधी वर्ड झोली, जिसका मतलब गोद या झोली है। झे वा जबर झो, झे वा जबर झो पहला हिस्सा, लाम ये जेर ली झोली, 4 हरूफ और
दो आवाजों पर मुश्तमिल। पहली आवाज झो, दूसरी आवाज ली। हुरूफ की तादाद अलग होती है, पदों या आवाजों की तादाद अलग होती है। हर लफ्ज टूटा हुआ होता है मुख्तलिफ हिस्सों में, और उसको समझने के लिए उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना जरूरी होता है ताकि आप उसको प्रोनाउंस कर सकें। तो पहले हिस्से में तोड़िए, झे वा ज़बर झो, लाम ये जेरी ली, लाम ये जेर ली, झोली। वही प्रोनाउंसिएशन जो उर्दू वाली है। फर्क यह है कि ये में नुक्ते आते हैं सिंधी में, उर्दू में नुक्ते नहीं आते। तो झोली का मतलब भी गोद या झोली है, मीन्स लैप, मीन्स झोली, JHOLI, हाउ टू प्रोनाउंस इट। और इसकी जमा भी, इसका प्लूरल भी, सिंस दिस इज ऑल्सो फेमिनाइन, तो फेमिनाइन के उसूल के मुताबिक इसकी जमा भी होगी झोलियों, झोलियों। ठीक है, झोलियों। यहाँ पर ये जेर गलती से आ गई है, लेट मी करेक्ट इट। ये जेर नहीं है यहाँ पर, ये जबर है यहाँ पर, राइट। तो झोलियों, दिस इज झे वा जबर झो, लाम जेर ले, ये वा नून गुन्ना पेश यूं, झोलियों जमा, झोलियों गोद की जमा, झोलियों। ठीक है, झोलियों। अब ये 1 2 3 4 5 6 हुरूफ पर मुश्तमिल है और इसके हिस्से हैं 3, इसके पद हैं 3, बल्कि इसके पद हैं 2.5। दरमियान में आधा पद आ रहा है। कैसे? झो पूरी आवाज है, झे वा ज़बर झो पूरी आवाज है, ले आधी आवाज है, लाम जेर ले आधी आवाज है। आपको खुद पता चलेगा पूरी आवाज है, पूरा पद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है। झे वा ज़बर झो, झो पूरी आवाज है, ले आधी आवाज है, ले सिर्फ टच कर रही है। तो दिस इज आधा पद और आधी आवाज। फिर तीसरी आवाज है ये वा नून गुन्ना पेश यूं, झोल यूं। तो ये अरेंजमेंट हुआ 1 पद प्लस आधा पद प्लस 1 पद, यानी ये 2.5 पदों पर मुश्तमिल लफ्ज है जो कि 6 हुरूफ पर मुश्तमिल है। उसको समझने के लिए आपने तोड़ा तो 2.5 पदों का बन गया। झो पूरा पद, ले आधा पद, यूं पूरा पद। झोलियों मीन्स गोदे या झोलियां, लैप्स इन प्लूरल, that will be pronounced like this: jo, JHO, le, ala, li, yung, YOON. Jholyu means jama. So jholi is singular, god, jholyu is jama, plural, hanj is singular, god, hanju is jama, god. Any questions about it? If you are unable to understand, tell me where you are confused so that that may be clear. Okay, what was sentence of the day yesterday? Anybody other than those who have participated yet? Eileen Sava, can you tell me what was sentence of the day yesterday? Eileen Sava, can you add? Can you tell me what was the sentence of the day yesterday? Fazila Qasim Saiba, can you please help me? Yes, sir. जी फजीला साहब, ताकि आयो। सर अल्लाह जो शुक्र मां ठीक है तवा सर। मुते भी अल्लाह से जो शुक्र है, बड़ी मेहरबानी तव्हां जी। फजीला साहब, कल जुमलो कहिड़ो हुयो? सर कल जो जुमलो हुयो, मूंखे तव्हां जे जवाब जो इंतजार रहंदो। ये कॾहिं चइबो आहे? उर्दू में बताएं पहले ताकि हमारे साथी समझ सके इसका मतलब क्या है। सर उर्दू में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये उमूमन किस मौके पर, कहिड़े मौके ते चयो वेंदो आहे उमूमन? सर जॾहिं असां कंहिंखे का ॻाल्हि पंहिंजी चवंदा आहियूं या कुझु पुछणो हूंदो आहे कंहिंखां, या को ॿ पार्टनर हूंदा आहिनि, बिजनेस शुरू करण वारा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे या त तक़रीबन को बि को रिश्तो नओं जुड़ण वारो हूंदो आहे त उहे पुछंदा आहिनि। प्रपोजल ऑफ एनीथिंग, चाहे रिश्ते जो हुजे, चाहे बिजनेस जो हुजे, चाहे नओं मनसूबो हुजे, चाहे नओं प्रोजेक्ट हुजे, को बि तव्हां कंहिंजे साम्हूं रिथा रखो त पोइ अॻिलो माण्हू चवंदो त मूंखे सोचण जो मौक़ो ॾियो त मां हिन में इन्वेस्ट करे सघां थो या नथो करे सघां। ठीकु आहे, त पोइ इन मौक़े ते जेका पहिरीं पार्टी आहे उहो चवंदी आहे त मूंखे तव्हांजे जवाब जो इंतज़ार। राइट, थैंक यू फजीला साहिबा, थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो आज का Thank you, जुमला, sir. वेलकम। आज का जुमला है, आज जो जुमलो आहे, यही जो गोद हमने इस्तेमाल किया ना, इसी को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में यूज करके देखते हैं, इसी लफ्ज को यूज करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो गोद, अगर मैं आपको कहूं कि गोद का इस्तेमाल करें, गोद को जुमले में इस्तेमाल करें, किस तरह से इस्तेमाल करें, कोई मुझे बताएं जुमला, कोई रैंडम सेंटेंस के जिसमें गोद लफ्ज का इस्तेमाल करें, झोली लफ्ज का इस्तेमाल करें। बेशक आप उर्दू में जुमला बताएं, कोई बताएं। आसिफ इकबाल साहब, कैन यू शेयर अ सेंटेंस विथ मी यूजिंग द गोद? गोद किस तरह से इस्तेमाल होता है? आसिफ इकबाल साहब, क्विकली।
if you can add anything, if you can help me. Eileen Sahaba, can you make a sentence using god or jholi or jholiyan? सर किसी बच्चे को गोद में बैठाने की तरह बोल सकते हैं। हाँ बोले ना, पूरा जुमला बनाए, पूरा जुमला बनाए, कोई भी जुमला बनाए। इस बच्चे को गोद में सुला दो, इस तरह ओके, की। ठीक है, इस बच्चे को गोद में सुला दो। थैंक यू। एनीबडी एल्स? उन्हनि दोस्तन में जिन पार्टिसिपेट ना ही कयो, आसिफ इकबाल साहब या मोहम्मद शजील साहब, एनीबडी हु हैवंट पार्टिसिपेटेड येट? कोई जुमला मुझे बताएं गोद को इस्तेमाल करते हुए, उर्दू में बताएं, सिंधी में बताएं, गोद को इस्तेमाल करने वाला कोई जुमला बताएं। गोद को इस्तेमाल कीजिए। मसूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मसूद साहब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल तव्हां ख़ुशि आहियो सर? ठीकु अल्लाह आहे जो शुक्र मतलब आहे। गोद सर लफ़्ज़ इन जे खे लाइ जुमिलो इस्तेमाल ईअं ठही सघे थो। कर। जी सर, ये हमने अपने भाई का बच्चा गोद लिया है। गोद लिया है, ठीक है, अपने भाई का बच्चा गोद लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आज थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में हम गोद को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये खासतौर पर राइटअप्स में इस्तेमाल होता है कहीं कहीं पर। मैंने तो किया है काफ़ी जगह, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, कहीं कभी कभार न्यूज़ एलिमेंट में भी आता है। एक माँ हमारी वो है जिसने हमें लिटरली जन्म दिया है, जैसा कि जने हुआ है, लेकिन एक माँ हमारी धरती है, ठीक है, हम इसी के खमीर से पैदा हुए हैं, इसी के मिट्टी से पैदा हुए हैं, और इसी के मिट्टी में आरामी होंगे। तो कभी कभार किसी मजमून में किसी बड़ी शख्सियत की वफात का जब जिक्र आता है, तो उसके बाद ये जिक्र आता है कि उनको फला जगह पर सुपुर्द खाक किया गया, या फला जगह पर आसूदे खाक किया गया। इस जुमले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि वो अपनी मादरे अर्ज, अर्ज कहते हैं जमीन को, अलिफ वाला अर्ज, आइन वाला नहीं, आइन वाला तो गुजारिश है। तो तू निशान अज़्म आली शान अर्ज़ पाकिस्तान, वो अर्ज़ पाकिस्तान अलिफ रे ज़्वाद, अर्ज का मतलब है जमीन, ठीक है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, अहमद कासमी साहब, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जैसे अंदेशा जवाल ना हो। तो अर्ज का मतलब है जमीन, ठीक है। मादरे अर्ज यानी जमीन माँ, धरती माँ, ठीक है। वो अपनी मादरे अर्ज या वो अपनी मादरे अर्ज की गोद में जाकर आरामी हुए, या वो अपनी धरती माँ की गोद में जाकर आरामी हुए। ये खासतौर पर वहां पर जुमला इस्तेमाल होता है जहां पर किसी की वफात के बाद उनके आसूदा खाक होने, उनके दफनाए जाने का जिक्र होता है। थोड़ा सा क्लासिकल लिटरेरी अंदाज में उसका जिक्र किया जाता है। जाहिर है कि वो धरती माँ है, और उसी की गोद में, उसी की आगोश में जाकर सोने को ये कहा जाता है कि यानी कब्र में आरामी होने को कहा जाता है। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उसका इजहार है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में इजहार करते हैं, क्योंकि मैं जिनको भी ये कहता कि आप इसको जुमले में इस्तेमाल करें तो उसकी लिटरल मीनिंग में ही इस्तेमाल करता, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। जुमला थोड़ा सा तवील हो जाएगा, लेकिन समझने से ये एक सोफिस्टिकेटेड जुमले का इजाफा आपके वोकेबलरी में हो जाएगा, सेंटेंस वोकेबलरी में। He rested in peace in the lap of his motherland. लैप कहते हैं गोद को, लैपटॉप का मतलब यह है कि जो गोद में रखकर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। लैप उसको इसीलिए कहते हैं, अगर उससे छोटा होता है तो उसको पाम टॉप कहते हैं, जिसको हथेली पर रख के इस्तेमाल करते हैं। पाम कहते हैं हथेली, पाम टॉप, नोटबुक को पाम टॉप कहते हैं कि आप हथेली पर रख के इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप का मतलब है आप अपनी गोद में रख के कहीं भी ट्रेवल में, जहाज में, ट्रेन में, मुसाफिर खाने में, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज लैपटॉप। तो ही रेस्टेड इन पीस इन द लैप ऑफ हिज मदरलैंड। हु यानी वो, धरती माँ यानी धरती माँ, इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है। धरती, धाल जबर ध, रेजर रे, ते ये जेर ती, हमजा जबर धरती है, माँ मीन्स माँ, आप पढ़ चुके हैं रिश्तों में। मीम अलिफ जबर माँ, हमजा पेश माओ, जी की, उर्दू में की, सिंधी में जी, जी, जीम ये जेर जी, हंज, हे नून जबर हन, जीम जबर ज, हंज में। दो डिफरेंट वर्ड्स सिंधी के आपको याद होगा, दो खड़ी जेर नीचे आता है, एक होता है आए, उसका मतलब होता है एंड, और दूसरा होता है मे का मतलब है मे, इनसाइड, विद इन। तो हंज में यानी गोद में, हंजा भी हम पढ़ के आए, वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। वनी यानी जाकर, वंजण मीन्स जाना, वनी मीन्स जाकर, नीचे लिखा हुआ जाकर। वनी
वा ज़बर व, न्ये ज़ेर न्ये, ये ज़ेर नी, वनी यानी जाकर, आरामी मीन्स आरामी, अलिफ बदा, रे अलिफ ज़बर रा, रे अलिफ ज़बर रा, मीम ये ज़ेर मी, आरामी, हुए थियो, हुए थियो, हुए की ट्रांसलेशन थियो, थे ज़ेर थे, ये वा ज़बर यो थियो, हु धरती माँ जी हंजम में बनी आरामी थे। हु की जगह पर नाम भी आ सकता है, हु इज प्रोनाउन जमीर, यहां पर नाम भी आ सकता है कि अब्दुल सत्तार दी धरती माँ जी हंजम में बनी आरामी थियो। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है, यहां पर कोई भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी शख्सियत का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वली राम वल्लभ धरती माँ जी हंजम में बनी आरामी थियो, या शेख अयाज धरती माँ जी हंजम में बनी आरामी थियो, अल्लामा इकबाल धरती माँ जी हंजम में बनी आरामी थियो। यानी आप यहाँ शख्सियत का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोनाउन भी हु का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वाले जुमले में ज़ाहिर पूरा मजमून लिखते हैं, आप उसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये है प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, दिस कैन बी रिप्लेस विद द नाउन, विद एनी नाउन। अगर यहाँ पर फीमेल का नाम आएगा तो थ्यो की जगह पर थी आ जाएगा, वाव कट जाएगा। बिल्किस ईधी धरती माँ जी हंज में बनी आरामी थी। ठीक है, इस तरह से रुतफाओ धरती माँ जी हंज में बनी आरामी थी, तो यहां पर थी हो जाएगा। थी इज फीमेल, यूज्ड फॉर फीमेल, द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड फॉर फीमेल, बट दिस इज यूज्ड फॉर मेल्स। तो यहां पर अगर शख्सियत का नाम मेल में आया तो यहां पर थ्यो होगा, और अगर फीमेल का आया नाम आएगा तो यहां पर थी हो जाएगा। और फीमेल के लिए प्रोवर्ब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी जो आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हु हमजा जबर आ जाएगा। हु मीन्स वो लेकिन खातून, फीमेल, राइट। हु मीन्स वो लेकिन मेल, तो हु के साथ थ्यो, हु के साथ थी, वो अपनी मादरे अर्ज की गोद में जाकर आरामी हुई। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, गोद का इस्तेमाल, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी वोकैब में ये इजाफा हो जाए। हु पंहिंजी धरती माँ जी हंज में आरामी थियो, हु पंहिंजी धरती माँ जी हंज में वनी आरामी थी। राइट, अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? आज का जुमला तो हमने पढ़ा, मैं आपको 5-6 छोटे छोटे जुमले बता रहा हूं। ये सेगमेंट हम शामिल नहीं करते, दिस इज नॉट अ रेगुलर सेगमेंट, but this is an addition in today's lecture. 5-6 छोटे छोटे जुमले जो शायद मैं पढ़ूंगा तो आपको उनकी मीनिंग आसानी से आ जाएगी। जरा सा अपने जहन को तैयार रखिए, प्रॉम्प्ट रहिए, ड्रैग न कीजिए। जब मैं आपसे कहूं तो आप फौरन आइए और बताइए उसकी मीनिंग क्या है। बिल्कुल छोटे जुमले हैं, जो सिंधी में पढ़ूंगा तो भी मीनिंग आपको उनकी आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो जब मैं मीनिंग पूछूं तो मीनिंग बताएगा, जब मैं पूछूं कि इसको पढ़ के सुनाइए तो पढ़ के सुनाइएगा। बिल्कुल छोटे छोटे जुमले। तो दीज आर कुछ नंढा नंढा सौला जुमला, सम इजी स्मॉल सेंटेंसेस, कुछ छोटे छोटे आसान जुमले। अपनी तवज्जो 100% यहाँ रखिए स्क्रीन पर। आई नीड योर अटेंशन फॉर, वैसे तो 6:30 बजे तक आपकी तवज्जो चाहिए, लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा एक्टिव कीजिए और थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए, थोड़ा सा क्विक रहिए, ताकि हम जल्दी इसको 5 मिनट में इस सेगमेंट को आगे बढ़े और नई चीज सीखें। नई चीज सीखने में एक्साइटमेंट मुझे तो होती है, आप में से बेशतर को होनी चाहिए। तो ये 6 छोटे छोटे जुमले हैं, और ये 6 जुमले जब पूरे होंगे तो क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी पोएम बन जाएगी। जो जिनकी मादरी जुबान सिंधी है उन्होंने शायद ये पोएम पढ़ी हो, यकीनन पढ़ी होगी प्राइमर 1 में, लेकिन वो भी हमारे साथ पढ़े, ऐसा ना कहें कि ये तो पढ़ी हुई है। नो, डू इट अगेन। डूइंग इट अगेन, वॉट एवर यू हैव लर्न्ड, उसका मजा अपना होता है। एक फिल्म देखी हुई हो, दोबारा देखते हैं तो आपको ये पता होता है कि इसके बाद कौन सा डायलॉग होने वाला है, उसको ज्यादा लुत्फ होता है। यार ये डायलॉग मैंने पिछली बार नहीं सुना था, अब मैं इसको बड़े जोर शोर से सुनूंगा। सो आर यू रेडी? फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, एंड लेट मी चेक हु विल रीड इट। कोशिश हो कि अब तक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके अलावा कोई वॉलंटियर करे। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। हु विल रीड दिस सेंटेंस? Simple sentence consisting of 2 words only. Who will read this? Rabia Sahaba. Rabia Sahaba. Ada ao. Ada ao. What does it mean? कुछ guess? Any guesses? सर ये होता है कि भाई यहाँ पे आओ। यहाँ पे आओ। Okay. Thank you. Thank you. Anybody else? Anybody else? Hurry up. Quick. Anybody else? Raise your hand. Raise your hand. Tell me. Who will read this? हो सकता है गलती हो गई हो रबिया साहब से, मे बी।
Imran Zakriya sahab. Foreign. अदा आओ, Means अदा आओ, Means- भाई आओ, bhai aao. Thank you very much. भाई आओ। Thank you very much, bhai aage. Thank you very much. Anybody else? Anybody else who will read this? Who is going to read this? Mirza Shehbaz Beg साहब, इतने खामोश ना रहा करें। अफरोज साहब ता होल्ड करो, अफरोज साहब होल्ड करो, ताए सिंधी में लिखल ताए तो पढ़ नहीं दो। मिर्जा शहबाज बेग साहब, मिर्जा शहबाज बेग साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप तो मुझसे ज्यादा शाय हैं। Anybody else? Anybody else? Asif Iqbal Sahab, this is the third time, this is the third and final call. Who is this, sir? मैंने 3-4 नाम लिए, पहले अपना नाम पुकारिए सर। आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा शुक्र है जी सर, ये पढ़िए। अदा आओ मीन्स सर कुछ अब अंदाजा इसकी मीनिंग का? भाई आओ। भाई आओ, यहाँ आओ। थैंक यू वेरी मच। तो भाई आ गए, इसकी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आओ यानी मोहब्बत से, प्यार से, अपनाइयत से। भाई भी पुकार सकता है, दोस्त भी पुकार सकता है, बहन भी पुकार सकती है। अदा आओ मीन्स भाई आओ, भाई यहाँ आओ, प्लीज कम। अब ज़ाहिर है आप किसी काम के लिए बुलाएंगे, ठीक है? प्लीज कम, you are welcoming somebody, you are calling somebody. Sentence number 2, who will tell me, who will read this? Are you ready? This is second sentence. Who will read this? Who will read this sentence? Quick, raise your hand and tell me. Quick, Aisha Khan. Aisha Khan. भली आओ, Ali Ao means? Any guesses? खुश आमदीद, Khush Amdeed. आपका खुश आमदीद। Shabash, good, very good. Anybody else? Who will read this? Who will read this? Who will read this? Raise your hand. Quick, 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 quick. I don't have time. Kanimur sir. Kanimur sir. भले आओ, भले आओ। भले आओ means? खुश आमदेद, सुठो अचो। ठीक है, भली कार। Thank you very much. फजीला साहबा, ता बताओ, ता पढ़ो। जी सर, भली आओ। भली आओ means? भली आओ means? Hurry up, quick, I don't have time, please. भली आओ, अफरोज साहब को बताएंगे। भली आओ की मीनिंग बताएं। अफरोज साहबा, unmute yourself, tell me. भली आओ, भली आओ, भली आओ, भली आओ. Who will tell me the meaning of भली आओ? Who will tell me the meaning of भली आओ? Okay, you are not telling me. I'm moving forward to the next slide. This is भली आओ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद, भले आओ, खुश आमदेद। So, भली आओ. I was telling you the meaning of भली आओ. भली आओ means भले आओ, खुश आमदेद आओ, 7 बार आओ, 100 बार आओ, भले आओ। भली आओ means खुश आमदेद, यहाँ तशरीफ लाओ। पहला था अदा आओ, दूसरा था भले आओ। इन दोनों को मिलाकर कौन पढ़ेगा? इन दोनों को मिलाकर कौन पढ़ेगा? पहला जुमला, दूसरा जुमला, पहला जुमला, दूसरा जुमला। Who will read this? Who will read this both? This one and this one. Quickly, Shazi Israt Sahaba, quickly read these both sentences. अदा आओ, भली आओ। Thank you. Eileen Sahaba, read with translation. अदा आओ, भली आओ। पहले पढ़ लें, उसके बाद ट्रांसलेशन बताएं। Okay. अदा आओ भली आओ Means? अदा आओ मतलब भाई आओ, खुश आमदीद आओ। खुश आमदीद नहीं, खुश आमदेद, खुश आमदेद आओ। Right? Okay. भली आओ। Imran Zakriya sahab, foreign, quickly, both sentences with translation. Quickly, 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 quickly. Quickly. अदा आओ, भली आओ, भाई आओ, खुश आमदीद। खुश आमदीद। Okay. तीसरा जुमला। Who will read this? Who will read this? Who will read this? Come on, quickly. Who will read this? Mohammed Shadil sahab. Mohammed Shadil sahab. Unmute yourself and read this. Try to read this. May it be wrong. Mohammed Shadil sahab, read it. Mohammed Shadil sahab, read it. Nadeem sahab, read it. Nadeem sahab, read it. Afroz sahaba, can you read it? Afroz sahaba, can you read it? Yes, Afroz sahaba, unmute yourself and read it. Afroz sahaba, read it. सर, जी आओ। G U R. जी आओ। Okay, thank you. Anybody else? Thank you very much, Afroz sahaba. Thank you very much. Anybody else? Anybody else? Aisha Tariq sahaba, can you read this for me? What is this written? What is this written? Aisha Tariq sahaba. Aisha Tariq sahaba.
फैजान अहमद साहब, रिजवान खान साहब, Rizwan Khan Sahab, those who don't speak in the class must come, must volunteer. जी सर, जी आओ। हाँ, ही कह रहा है, रिजवान साहब है। क्विकली, टाइम कोने मोट बुधायो। सर। रिजवान साहब थोड़ो जागो है, बुधायो ही पढ़ो, छा पढ़ियो तो जल्दी पढ़ो, ॿीहर पढ़ो। जी आओ। जी ना है, जी का पो हमजा पेश साथो बुधाए पियो। Hurry up. जी Hurry up. आओ। G R. Okay. Who will G tell out. me? Who will tell me? There's another gentleman also. I could listen his voice. Who was he? Anybody else? Anybody else? Who will tell me the meaning of this? G R. G R. Who will tell me the meaning of this? Rabia Sahaba, any guesses about the meaning of this? G R. G R. No, sir. No guesses? Okay. Okay. Aisha Khan Sahaba, any guesses? Any guesses? जियो आओ। जी। जीते रहो। हाँ, दुआ तो है लेकिन जीते रहो नहीं है। वैसे खैर जिएंदो रही अगर हो जाए तो ये जीते रहो होता। मोहम्मद जलील साहब, एनी गेसेस? मोहम्मद जलील साहब। सर मेरा ख्याल है जी, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं जी आया नो, यानी वेलकम। हाँ, ये भी वेलकम है। थैंक यू। मेरा ख्याल है ये उसके करीब है शायद। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। जी आओ का मतलब भी है खुश आमदेद आओ। पहले वाला भली आ, जी आ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद आओ। अदा आ, भली आ, जी आ। अदा आओ की मीनिंग भाई आओ, भली आओ, खुश आमदेद आओ, जी आओ, खुश आमदेद आओ, जी आओ। जी भी यही होता है। वैसे जी का मतलब होता है जी, मन, दिल, यानी मेरा दिल खुश हुआ, आओ। ठीक है। Who will read these 3 sentences together? अदा आओ, भली आओ, जी आओ। Who will read these 3 sentences together? Who will read? अफरोज साहबा पढ़ो। अफरोज साहबा पढ़ो। जी सर। अदा आओ, भली आओ, जी आओ। जी आओ, थैंक यू। आयशा तारिक साहबा पढ़िए। अदा आओ, जियो आओ, भली आओ। भली आओ पहले था, अब पढ़े दोबारा। ऑर्डर दुरुस्त कीजिए। अदा आओ, भली आओ, जियो आओ। तीनों की ट्रांसलेशन बता सकती हैं? भाई आओ, खुशामदीद आओ। ओके, thank you very much. Rabia Sahaba, read these 3 sentences together. Read these 3 अदा आओ, sentences. भली आओ, जियो आओ। ठीक है, मीनिंग बताइए। भाई आओ, खुश आमदीद आओ, खुश खुशामदेद, खुशामदेद, खुशामदेद आओ, खुशामदेद आओ। दोबारा पढ़ें, तीनों की मीनिंग ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ें, क्विकली एक साथ पढ़ें जल्दी। भाई आओ, खुश आमदीद आओ, खुशामदेद आओ, खुशामदेद आओ, खुशामदेद। उर्दू के वाइवा में अगर खुशामदीद कहेंगे प्रोफेसर कवी अहमद जैसे किसी आलिम फाजिल के सामने तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। खुशामदीद के मायने कुछ और हो जाते हैं। फारसी में खुशामदेद है देदन, ठीक है, आमद से निकला है, आमद, खुशामदेद। जी, खुशामदेद आओ, जी आओ, खुशामदेद आओ। थैंक यू वेरी मच रबिया साहबा। द fourth sentences. 4th sentence. There are total 6 sentences. Who will read this? Who will read this? Who will read this? Asif Iqbal Sahaba. Asif Iqbal Sahab. ऐसे नहीं interrupting. Imran Zakaria Sahab, don't interrupt like this. Don't behave like children. The correct way is either you raise your hand or you pronounce your name. Then I'll allow you either to read the sentence or not. Asif Iqbal Sahab. मानी खाओ मीन्स खाना खाओ। अच्छा, खाओ इसको ना बोलें, ये खाओ। खाओ, अगर खाओ होता तो उसके साथ वाव होता। खाओ एंड खाओ में फर्क होता है। पेश और वाव के तलफ्फुज में आप भी जिस तरह से रबिया साहबा करती हैं, मैं उनको समझाता रहता हूं कि खाओ नहीं है। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन खाओ एंड खाओ। दिस इज मानी खाओ। कैसे बोल रहा हूं मैं? खाओ। रीड इट सर, आसिफ साहब। मानी खाओ, मानी खाओ नहीं, खाओ, 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 मानी खाओ, मानी खाओ, खाओ, मानी Okay. खा। Many खा। Okay, thank you. Anybody else?
Anybody else? Raise your hand. Anybody else who is interested, raise your hand. Mohammed Jalil sir. Mohammed Jalil sir. मानी जी सर सर जलील अर्ज कर रहा जी, जलील हूँ सर। मानी खाओ मानी खाओ। मानी Thank you. Good. खाओ Good. Eileen साहब। और इसका मतलब है रोटी रोटी खाओ सिर्फ मेरे रोटी ख्याल नहीं, में। खाना खाओ। खाना मीन्स पूरा, मतलब या लंच है या डिनर, जो भी है। ओके ठीक है, खाना खाओ, खाना खाओ। मानी मैंने बताया था, मानी ब्रेड को भी कहते हैं, रोटी को, चपाती को भी कहते हैं। लेकिन उस एक वक्त के खाने को भी, तो चाहे उसमें चावल ही क्यों ना हो, चाहे उसमें नूडल्स ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी लंच को या ब्रेकफास्ट को या डिनर को, उसको मानी कहते हैं। भाई मानी खा दिया मीन्स ये हैव यू हैड ब्रेकफास्ट और लंच और व्हाटएवर, तो उसको मानी खाओ मीन्स खाना खाओ, राइट? आइलिन साहबा। आइलिन यस साहबा। सर खाओ खाओ नहीं, मानी खा। खा मानी खा। मानी खा मीन्स मानी खाओ खाना खाओ खाना खाओ। Thank you. खाना खाओ, मानी खाओ. Okay. The translation of this is मानी खाओ. मानी खाओ, खाना खाओ. अब हो गए 4 sentences. Who will read this 4 sentences for me together? All the 4 sentences for me together. Though these are not written on any slide. Aisha Khan Sahaba, read it. अदा आओ भली आओ जी आओ आओ नहीं, आओ नहीं, आ. मानी अदा आ. अदा आ. अदा आ हम्म. अदा आ भली आ जी आ मानी खा Okay. Translation. भाई आओ खुशामदीद आओ खुश आमदेद आओ. खुशामदीद आओ खुश आमदेद आओ. खाना खुश खाओ आमदेद आओ. खुशामदीद आओ देद. खुश आमदेद. उर्दू भी सिखा देते हैं ना आपको खुशामदीद साथ साथ. दीद नहीं है, देद है. खुश देद आमदेद. खुश आमदेद आओ. खुशामदीद हाँ, खुश आमदेद आओ. आओ जी. उसके बाद खाना खाओ खाना खाओ. चलिए, बहुत शुक्रिया. शादी साहब, यू रेज योर हैंड. शादी साहब. अदा जी सर. अदा आ जी भली आ जी जी आ मानी खा जी. भाई आओ खुशामदेद आओ खुशामदेद आओ खाना खाओ. खाना खाओ. Okay. Next one is, thank you Shadi Sahaba. Next one is this. Who will read this sentence for me? Who will read this sentence for me? हमारी खामोश जनता में से कोई अगर पढ़ेगा तो रिजवान खान साहब. रिजवान खान साहब. आइलिन साहब, then I'll give you a turn. Okay. पहले रिजवान खान साहब को ट्राई कर लें. रिजवान खान साहब. रिजवान खान साहब. पानी पी साईं. माना सर जी सर, पानी साईं. पी सर. साईं तो कौन है पानी लिखे पी. पानी पी मीन्स. न साईं साईं तव्हां जो अच्छा, मूंखे तो चलो. हाँ, पानी पी माना मतलब साईं माना 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 पानी पी, बस उन्हें नोजे पानी पी. चलो ठीक है. आइलिन साहब. आइलिन साहब. जी सर पानी पी मीन्स कुछ एनी आइडिया? मतलब पानी सॉरी. मतलब पानी पानी पिए. ठीक है, पानी पिए या पानी पियो. ओके. अफरोज साहब. अफरोज साहब, read it loud, then इमरान ज़करिया साहब. हरियप बी क्विक. इमरान ज़करिया साहब आप आते हैं जब तक अफरोज साहब आती हैं. जी, इमरान ज़करिया साहब. व्हाट इज दिस रिटन? पानी पियो. पानी पियो. मीन्स पानी पियो सर. पानी पियो. Okay, drink water. Okay. Now the meaning of this is पानी पियो. Okay, पानी पी, मानी खा के बाद पानी पियो means पानी पियो. Who will read this all 5 sentences for me? All 5 sentences. It means one sentence is still remaining, which is the conclusive sentence. But who will read ada a, bali a, ji a, mani kha, pani piyo? Who will read this for me? Who will read this for me? Anybody who will read this for me? Fazila Sahaba, would you read this for me? हाँ, करीम साहब आप पढ़ो करीम साहब. यस सर. हाँ, फजीला साहब. अदा आओ भले आओ जी आओ मानी अच्छा, खाओ आओ ना पानी कहें. पी. करीम साहब इसको आओ ना कहें. This is बुधो. यानी कि आ करे, आ जो हल को टच लियोस. जेकर नथा ॾेई सघो त ख़ाली आप कर छॾियो. अदा भली आ जी आ मानी खा. हल को टच नथा ॾेई सघो पेशेंट जो, त ख़ाली तव्हां उनखे आ कर छॾियो. अगेन रीड इट सर. अदा आओ मानी खाओ पानी पी. डायरेक्ट मानी खा. खुशामदीद तो कहें. अदा आओ के बाद क्या है? 2 जुमले आप खा के. अदा आओ भले आओ जी आओ मानी खाओ पानी पी. ओके. फजीला साहब, हरी अप.
Yes, sir. अदा आओ, भली आओ, जी आओ, मानी खाओ, पानी पी. Okay, Shadi Israt Sahaba. Shadi Sahaba. अदा आ भली आ जी आ मानी खा हम्म, पानी पी. हाँ बताएं, मीनिंग बताएं. भाई आओ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद आओ, खाना खाओ, पानी पियो. Pani piyo. The last sentence, the last sixth sentence, which will conclude this poem. This is, who will read this? Who will read this? Anybody? 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 जिया Who is आसिफ this? इकबाल आसिफ इकबाल साहब पढ़िए. आसिफ इकबाल जी आसिफ सदा साहब पढ़िए. जिया जिया नहीं है, जियो. जियो. हमजा पेश, हमने सदा पेश वाली जियो जदवल की थी. हमजा पेश क्या सदा था? जियो मीन्स सदा जियो सदा खुश रहो सदा खुश रहो. या Thank हमेशा you. खुश रहो. हमेशा खुश रहो. Thank you. इमरान जकरिया साहब. हरी up. सदा जियो, सदा जियो मीन्स सदा खुश रहो. सदा खुश रहो नहीं, सदा जियो, जीते रहो, जीते रहो. खुश रहने की दुआ करता है तो वो कहता है सदा खुश रहो, सदा खुश रहो. जियो मीन्स जीते रहो. जी मीन्स जीते रहो, जिंदा रहो, सांस ठीक लेते सर. रहो. ठीक है, जियो. माविश शहजाद साहबा. माविश साहबा, can you read this for me? Mavish Sahib, unmute yourself and can you read this for me? Mavish Sahib, can you read this for me? Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, Can you ma'am. hear me? Yes, I can hear you. Can you read this for me? Yes, sir, sure. सदा जियो, Means जीते रहिए. जीते रहिए, सदा जीते रहिए. Thank you very much. This is सदा जी, यानी सदा जियो या जीते रहो. Who will read all these 6 sentences for me? Now this poem is complete. This is the last poem of primer 1 in Sindhi. All who have read Sindhi primary class 1, they have read this poem. Aisha Tariq Sahib will read this whole poem for me with translation. Aisha अदा Sahib. आ भली आ जियो आ मानी खाओ पानी पी सदा जी. Translation, please. भाई आओ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद आओ, रोटी खाओ, खाना खाओ, पानी पियो, हमेशा खुश रहो. खुश रहो नहीं, जीते रहो. जी means जीते रहो, सांस जीते रहो. लेते रहो, जीते रहो. Thank you. Afro Sahib. Afro Sahib. Hurry up, quick, 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 quick. Read it, read it. जी. अदा आओ, भली आओ, जी आओ, पानी खाओ, पानी पी, सदा जी. Thank you. शादी सर साहब. जी, चओ अफरो साहब. इन जी मानी हिकिड़ी भेण पंहिंजे भाउ खे मानी जे लाइ सॾु थी करे, भली कार थी चवे, पाणी पीअण जे लाइ थी चवे ऐं सदा ख़ुशि रहण जी दुआ थी ॾे. इनमें किथे लिखियल आहे त भेण थी चवे? भाउ नथो चई सघे? मां पंहिंजे भाउ खे अदा नथो चई सघां? अदा भली आहे, हिन में लिखियल त कोन्हे त किथे भेण थी चवे? पर जेको बुक असां पढ़ियो न उन में हिकिड़ी भेण भाउ खे चवंदी आहे, उनखे रओ पातल हूंदो उनमें आहे. इलस्ट्रेशन अहिड़ी ठहियल आहे, ठीकु आहे, पर हूअं इन नज़्म में किथे बि कोन्हे लिखियल त का भेण थी चवे. मां पंहिंजे भाउ खे बि चई सघां थो. तव्हां पंहिंजे भाउ खे चई सघो था, मां पंहिंजे भाउ खे, भाउ पंहिंजे भाउ खे बि चई सघे थो. हूअं इलस्ट्रेशन अहिड़ी ठहियल आहे. जेकॾहिं हुन ते इलस्ट्रेशन मां अहिड़ी ठाहियां जो हिकिड़ो नंढो भाउ पंहिंजे वॾे भाउ खे या वॾो भाउ पंहिंजे नंढे भाउ खे सॾु करे, तॾहिं बि दैट्स फेयर. दैट्स इहो इन पोएम में किथे बि न आहे. थैंक यू वेरी मच. हर जॾहिं असां पढ़ियो त हा, उहो तव्हां सही था चओ. उन ते जेका इलस्ट्रेशन ठहियल आहे, इमेज जेको ठहियल आहे, उहो अहिड़ो ठहियल आहे हूअं. पर इन मां माना इहा न वठिजे, मतिलबु इहो इन करे थो मां कॉम्प्रिहेंसिव इन करे रखां त जेकॾहिं हू असांजा उहे दोस्त जंहिंजी माद्री ॿोली सिंधी न आहे त उनखे इहो लाज़िमो मलज़ूम न सम्झनि त इहा भेण ई चई सघे थी, भाउ नथो चई सघे. तंहिंजे करे दिस शुड बी ओपन त भाउ बि चई सघे थो. राइट. थैंक यू. शादी सिराज साहिबा, रीड इट. थैंक यू. शादी सिराज साहिबा. अदा भली आ जी आ मानी खा पानी पी सदा जी. भाई आओ, खुश आमदेद आओ, खुश आमदेद आओ, खाना खाओ, पानी पियो, सदा जीते रहो. थैंक यू. आयशा खान साहिबा, रीड इट. आयशा खान साहिबा. जी सर. अदा भली आ जी आ मानी खा पानी पी सदा जी. गुड. ट्रांसलेशन. भाई आओ, खुश आमदीद, खाना खाओ, पानी पियो, सदा जियो. थैंक यू. रबिया साहिबा. रबिया साहिबा. अदा आ भली आ जियो आ मानी खा पानी पिए सदा जी.
ट्रांसलेशन। अदा आओ, खुशामदीद आओ, खुशामदीद, आओ, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद आओ, खुशामदीद आओ, खाना खाओ, पानी पियो, सदा जियो। Thank you very much. So this is the poem. Thank you, sir. Oh, welcome. This is a poem in primer 1. This is the only poem in primer 1. Primer 1 का जो first part है सिंधी बाराणु किताब. There are 2 parts of primer 1. So बिल्कुल जो सिंधी बाराणु किताब 1 is बाराणु किताब means बच्चों के लिए reader, the reader for kids. और दूसरा है सिंधी पैरों किताब. ये दोनों एक साल में पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो उसमें जो primer 1 है जो फॉर किड्स है उसका द ओनली पोएम एंड द लास्ट पोएम इज दिस, द इजीएस्ट पोएम, ठीक है? छोटे छोटे जुमले, आसान इसमें हरूफ हैं, आसान अल्फाज हैं. तो आई होप ये आपको अभी याद हो गई होगी, लेकिन इसको याद कर लीजिए. किसी भी क्लास में कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है, टेस्ट में भी आ सकती है और ओरल एग्जामिनेशन में, वाइवास में भी आ सकती है. सो दिस इज द इजीएस्ट पोएम. जब आप इजीएस्ट पोएम याद कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको दीगर पोएम्स जो शुराफाक पोएम्स हैं सिंधी की, जैसे बेरुमल गरीब की ट्रांसलेशन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की, वाड़े तारा गोल तारा रोशन तारा चमके वारा सांझी टाणे निकरो था ओ बसजे में पकड़ो था चिलको चमको सारी रात कजे अवांजी कहिड़ी बात जो तव्हांजी जेन हुजे वाट हड़ू कर वाट मंझे. या उस्ताद बुखारी की जूजू माटी लसी पंहिंजी घाटी मक्खण जी चाणी अमड़ सियाणी जैसी नज़में भी आप याद कर सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इजी पोएम और इजीएस्ट पोएम ऑफ प्राइमर 1 जो कि छोटे छोटे 6 जुमलों पर मुश्तमिल थी. तो आज सेंटेंस ऑफ द डे के बाद हमने पहली बार कोई पोएम याद की. आई होप दैट यू विल रिमाइंड दिस, you will memorize this poem by heart, and whenever you will be asked to present this poem you will be presenting, right? खास तौर पर वो कि जो सिंधी को एज सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि जो एज फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं उन्होंने प्राइमर में जरूर पढ़ी होगी और उनको असबर होगी, याद होगी, राइट? सो वी आर मूविंग towards yesterday's assessment, class assessment number 4. Yesterday's class assessment number 4, कल की class assessment number 4, कल की class तशखीस number 4 जो कि वीकली असेसमेंट हमारी हुआ करती है और फर्स्ट डे ऑफ द वीक पर आपकी खिदमत पे पेश की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इसकी की डिस्कस करते हैं और आप मुझे बताएंगे कि सवालों के सही जवाब क्या हैं. यू विल पार्टिसिपेट एंड टेल मी, क्योंकि आपने चेक कर लिए होंगे, टेस्ट के बाद चेक कर लिए होंगे कि उनके सही जवाब क्या हैं. सवाल नंबर 1. सो दीज आर सवाल के सही जवाब, सवाल के दुरुस्त जवाब, द करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस टेस्ट, इन दिस असेसमेंट टेस्ट. नंबर 1 क्वेश्चन था, सिंधी ॿोलीअ में उर्दू लफ़्ज़ थकन खे डैश चयो वेंदो आहे. सिंधी ॿोलीअ में उर्दू लफ़्ज़ थकन खे डैश चयो वेंदो आहे. थकन या थकान को सिंधी में डैश कहा जाता है. द फटीग इज कॉल्ड डैश इन सिंधी. शादी असराज विल टेल मी द करेक्ट आंसर. थको. थको. मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब will tell me the correct answer. थको. थको. को नहीं है, थको. थको. पेश और वाव में फर्क कीजिए सर प्लीज. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, काफ के बाद अगर वाव हो तो थको होगा, ये है थको. थको, राइट? थको. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज थक, फटीग, थकन, थकान, थक, राइट? थक. बहुत सारे लोगों ने सिंधी में भी इसको, अच्छा आंसर्स वो हैं जो हमने आपको बताए हैं, आंसर्स वो नहीं जो आपने अजीम किए हैं. मतलब मसलन कुछ लोगों ने, दोस्तों ने, कुछ स्टीम्ड लर्नर्स ने अगर वो क्लास मिस की है तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि इसके जवाब ये होगा. वो नहीं है, जवाब वो है जो आपको बताया गया है. यू हैव टू राइट दैट आंसर. दैट इज द, सिंधी में कहते हैं तुज, एग्जैक्ट, बिल्कुल पिन पॉइंट करता हुआ वो जवाब है. ऐसे तो रैंडमली तो बहुत सारे जवाब आ सकते हैं. सिंधी में थकान भी बोल लेते हैं, सिंधी में थकन भी बोल लेते हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि प्योर सिंधी में इंडिजिनस लफ्ज है थक, एंड यू हैव टू राइट दैट थक. वैसे तो उर्दू का भी बहुत इन्फ्लुएंस आ गया है, खासतौर पर शहरी सिंधी में. बहुत सारे लोग उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर मोनस उर्दू में इस्तेमाल करते हैं. मुझो दिल धड़के तो, मुझी क्लास मिस थी वई, मुझी किताब किथे आए. हालांकि सिंधी में किताब मुज़क्कर है, सिंधी में मौसम मुअन्नस है, मौसम सुठी आहे. वो उर्दू के इन्फ्लुएंस से कहते हैं कि मौसम सुठो आहे, तो उस इन्फ्लुएंस की बात हम नहीं कर रहे. उसमें तो आप थकान भी कह लें, उसमें तो आप फटीग भी कह लें, लेकिन वी आर आस्किंग अबाउट what you are what you're told about, what we have learned you about this word, that is thak. Second question was, हेठिन जुमलो सिंधी में तर्जुमो कयो. Translate the below sentence into Sindhi. Come if you have to.
आपको आना है तो आए। दर जजील जुमले का सिंधी में तर्जुमा करें, आपको आना है तो आए। क्या होगा इसका जवाब? Who will tell me? Who will tell me? खामोश जनता में से अगर कोई आएंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। एनीबडी फ्रॉम खामोश जनता? आयशा खान आप बताइए। तव्हां खे अचो त अचो। अचो तो अचो, ये कहाँ की सिंधी है? कहाँ के अचो? तो आपने ये लिखा था ते और हे। अगेन अगेन बोलिए, दोबारा बोलने की कोशिश कीजिए। तव्हां खे अचो ता अचो। No, so no, ma'am. Sorry, this is the wrong answer. Aisha Tariq साहिबा। तव्हां खे अचणो आहे त अचो। Good. Okay, रबिया साहिबा। तव्हां खे अचणो आहे त अचो। तो हाँ नहीं है, तब हाँ, तब हाँ, त अलग है, व अलग है, तब हाँ। अगेन तव्हां खे अचणो आहे त अचो। थैंक यू। तव्हां खे अचणो आहे त अचो। अफरोज साहिबा, अफरोज साहिबा रेज योर हैंड। अफरोज साहिबा। यस सर। जी जुमलो पढ़ा। जी पढ़ो। अव्हां खे अचणो आहे त अचो। थैंक यू। अमाखे या तव्हांखे, तव्हां और अवां सेम थिंग है। अमाखे अचणो आहे त अचो या तव्हांखे अचणो आहे त अचो। द करेक्ट आंसर टू आपको आना है तो आए आए इज अमाखे अचणो आहे त अचो। आयशा खान साहब प्लीज नोट इट डाउन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अमाखे अचणो आहे त अचो, तव्हांखे अचणो आहे त अचो। ठीक है, दिस इज सही जवाब। नंबर 3 था सुबह सादिक को सिंधी में डैश और उर्दू में और उर्दू लफ्ज दोपहर को सिंधी में डैश कहा जाता है। नंबर 1 बात, बिफोर यू आंसर दिस, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल ड्रॉप किया है, शायद उनको मुश्किल लगा। बहुत सारे लोगों ने इवन वो कि जिनकी मादरी ज़बान सिंधी है, सुबह सादिक को अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया। हमने आपको 2 अल्फाज पढ़ाए थे और वही प्योर अल्फाज हैं सुबह सादिक के लिए। सुबह सादिक का मतलब यह है कि अभी सूरज नहीं निकला, यानी रात की स्याहधारी सफेदधारी से अलग हुई है। उस वक्त जब फजर की अजान आती है, जब रोजे का वक्त शुरू होता है, जब अमलन दिन और रात अलग अलग होते हैं। कुरान पाक में ना स्याहधारी से सफेदधारी का अलग होना, जब आप आसमान पे देखते हैं तो आपको वो स्याही जो है वो सवेरे में तब्दील होती हुई नजर आती है। उसके बहुत बाद सूरज तुलू होता है। उस वक्त से लेकर जब स्याहधारी सफेदधारी से अलग होती है से लेकर सूरज तुलू होने तक फजर की नमाज पढ़ने का वक्त होता है, जो कोई घंटा 1.5 घंटा होता है। मौसम के लिए ऐसे तब्दील होता है, कभी 1.25 घंटा होता है, कभी 1.5 घंटा होता है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सूरज का उभरना और सुबह सादिक। सुबह सादिक का मतलब यह है कि रात खत्म हुई, सुबह की हद शुरू हुई, उसको सुबह सादिक बोलते हैं। उसको आप अपनी मर्जी से कोई लफ्ज नहीं दे सकते। तो नंबर 1 बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। नंबर 2 सिर्फ बहुत सारों ने सुबह सादिक के मायने लिखकर दोपहर को छोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, शायद उनको नहीं आता होगा। नंबर 3 जो है वो बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा है इसको। सुबह सादिक के सिंधी में डैश और उर्दू में लफ्ज दोपहर के सिंधी में डैश चलता है। सुबह सादिक को सिंधी में डैश और दोपहर को डैश कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग इज कॉल्ड डैश एंड आफ्टरनून इज कॉल्ड डैश इन सिंधी। पहले डैश में क्या आएगा? विल टेल मी, पहले डैश का सही लफ्ज क्या है? सुबह सादिक को सिंधी में क्या बोलते हैं? सर मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा साहब बताइए। सर बाक। बाक है, ओके। बाक है, बाक नहीं। सिंधी का उसूल है आखिरी हर्फ पर हरकत आएगी। बाक है, बोलिए। हरकत आएगी, बाक। बाक है, ओके। इमरान ज़कीर साहब। पर बाक। हाँ, पिरह है, पिरह पिरह अलग जी। है, बाक अलग है। आप कहेंगे पिरह या बाक, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो सही होगा। पिरह अलग है, बाक अलग है, दोनों सिनोनिम्स हैं तो राइट। एनीबॉडी एल्स? ठीक सर। एनीबॉडी एल्स? सुबह सादिक को सिंधी में क्या बोला जाता है? एनीबॉडी एल्स? दोपहर को सिंधी में क्या बोलते हैं? दोपहर को सिंधी में क्या बोलते हैं? नदीम सोल साहब, कैन यू ऐड? शादी सराज साहब, दोपहर को सिंधी में क्या बोलते हैं? सर मंझंद। मंझंद, दोनों जो है नून गुना है। मंझंद, मंझंद। मोहम्मद जलील साहब आपको बताएंगे किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको। मोहम्मद जलील साहब। मंझंद। मंझंद, मंझंद। हाँ, मंझंद। आखिरी हर्फ पर हरकत आएगी, दाल पर जेर आएगी। मंझंद, 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 मंझंद। ओके, तो सही जवाब है पहले का पिरह या बाक है। ये स्लैश जो है वो शो करता है या पिरह या बाक है। या बाक लिखेंगे तो भी दुरुस्त है, पिरह लिखेंगे तो भी दुरुस्त है।
और दोपहर को कहते हैं मंझंदे, मंझंदे, राइट, मंझंद। और दोपहर के खाने को हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ खानों को क्या कहा जाता है। मांझांदो, मंझंद से निकला है मांझांदो। जैसे होता है ना कि अपना इशाइया, रात के खाने को इशाइया कहा जाता है, और दोपहर के खाने को जोराना कहा जाता है। जोहर से निकला है जोराना, रात के खाने को इशाइया यानी डिनर को इशाइया कहा जाता है। सिंधी में जो दोपहर का खाना उसको कहा जाता है मांझांदो, मीन्स लंच। तो मंझंद से निकला है, रूट वर्ड इज मंझंद। फिर है बाक, इस सुबह सादिक, मंझंद इज दोपहर। उसके बाद हमने कहा था कि बोलिए जो महारत, राइट, लैंग्वेज स्किल्स। बोली जी महारतुनि में जेकॾहिं असां पढ़ण खे बहितर बणाईंदासीं त असांजी डैश जी महारत में वाधारो थींदो। देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स and two of those there are 2 pairs of these skills which are directly proportional to each other. एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरी तरफ एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा। तो डैश जी महारत में वाधारो थींदो। जेकॾहिं असां डैश खे बहितर बणायूं त असांजे ॻाल्हाइण जी महारत में इज़ाफ़ो थींदो। ज़बान की महारत में अगर हम पढ़ने में बेहतरी लाएंगे तो हमारी डैश की महारत परवान चढ़ेगी। अगर पढ़ने में बेहतरी होगी तो क्या बढ़ेगा, टेल मी। अगर पढ़ना बेहतर करेंगे, जो कुछ लिखा है, अगर मैं बंगाली सीख रहा हूँ, ये बंगाली में लिखा हुआ है, अगर मेरी बंगाली पढ़ना अच्छा होगा तो क्या मेरा इंप्रूव होगा? आयशा तारिक साहब, म्यूट करो। आयशा तारिक साहब, पढ़ना बेहतर होगा तो लिखना, लिखना। इफ यू वांट टू राइट गुड, यू हैव टू रीड गुड। If you want to write standard language, you have to read. जी जनाब, so we were talking about the language skills and we were on the question of language skills। और उस स्लाइड पर हम थे। आयशा तारिक साहब ने हमें ये सही बताया कि अगर हम पढ़ने को बेहतर बनाएंगे तो लिखना बेहतर होगा। तो पहले ब्लैंक में क्या सही जवाब होगा, क्या लिखेंगे? आपने इसके जवाब इंग्लिश में दिया है, उर्दू में दिया है, हिंदी में दिया है, बिल्कुल सही है। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, कौन सा लफ्ज आएगा? ज़बान की महारत में अगर हम पढ़ने में बेहतरी लाएंगे तो हमारी डैश की महारत परवान चढ़ेगी। आयशा खान साहबा, क्या आएगा उसमें पहले ब्लैंक में? राइटिंग। फर्स्ट राइटिंग, ब्लैंक में राइटिंग। राइटिंग। अगर पढ़ना बेहतर होगा तो राइटिंग हमारी बेहतर होगी, लिखण बेहतर, लिखना बेहतर होगा। और सेकंड में? सेकंड में आएगा लिसनिंग। अगर हम अपने सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे तो हमारी बोलने की सलाहियत सुधरेगी। करेक्ट, गुड। तो ये 4 पेयर्स हैं आपस में। एक है रीडिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइटिंग। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप अच्छा रीड करें। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि मैं अच्छा मुसन्निफ बनना चाहता हूं तो भाई अच्छा मुताला करो, अच्छी किताबें पढ़ो तो अच्छे मुसन्निफ बन सकोगे। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा सुनो, कान बनोगे तो जुबान बन सकोगे। फर्ज करें मैं अच्छा मुकर्रर बनना चाहता हूं तो अच्छे मुकर्ररों को सुनो, अच्छा कंपेयर बनना चाहता हूं तो अच्छे कंपेयर्स को सुनो। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर एवरी लैंग्वेज स्किल। तो ज़बान की महारत में, बोली जी महारत में जेकर असां पढ़ण खे बेहतर बणाईंदासीं तो असांजे लिखण जी महारत में वाधारो थींदो, लिखने की महारत में, राइटिंग स्किल में इजाफा होगा। जेकॾहिं असां ॿुधण खे बेहतर बनायूं, लिसनिंग को बेहतर बनाएं, सुनने को बेहतर बनाएं, तो हमारी बात करने की स्किल सुधरेगी। ये आपको चार्ट याद होगा, हमने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट है स्पोकन का। लिसनिंग अच्छी होगी तो स्पीकिंग अच्छी होगी। ये 2 पेयर्स आपको बताए थे। लेक्चर नंबर 5 की स्लाइड्स देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 5, लिसनिंग बेहतर होगी, इनपुट लिसनिंग है तो आउटपुट स्पीकिंग है। राइटिंग में इनपुट रीडिंग है, अच्छी रीडिंग, तो राइटिंग का आउटपुट है। दीज आर 4 लैंग्वेज स्किल्स। तो सही जवाब क्या होगा? बोली जी महारत में जेकॾहिं असां पढ़ण जी बेहतर बणाईंदासीं त असां जे लिखण जी महारत में वाधारो थींदो। पहले ब्लैंक में आएगा लिखण, लिखना या राइटिंग, और दूसरे में आएगा जेकॾहिं असां ॿुधण खे, सुनने, लिसनिंग खे बेहतर बणायूं त असांजे ॻाल्हाइण जी महारत सुधरंदी। दिस वाज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखण ऐं ॿुधण। पहले में लिखण और दूसरे में ॿुधण। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब था पहले में लिखण, दूसरे में ॿुधण। क्वेश्चन नंबर 5, पेश जी जदवल में सिंधी आयोटा जे पहिरनि 5 अखरनि जी मश्क करे ॾेखारियो या लिखो। पहिरियां सिंधी 5 अखर लेटर्स पेश की जदवल में सिंधी हुरूफ तहजी के पहले 5 हुरूफ की मश्क कर। अल्फाज नहीं कहे, पेश की जदवल में पहले 5 हुरूफ, अलिफ बे भे ते थे, अलिफ बे भे ते। अगर 5 अलिफ बे बे भे ते, ये है 5 हुरूफ, अलिफ बे बे भे ते। पेश की जदवल में क्या होगा? इन 5 पर पेश आ जाएगा।
ये लिखना था आपने, ओ बो बो भो तो, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, भे पेश भो, बे पेश बो, भे पेश भो, ते पेश तो। पेश के जदवल में हरूफ ताजी के पहले 5 हरूफ की मश्क लिखें। इसका सही जवाब ये था, उसमें अल्फाज नहीं लिखते थे आपने। अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, बे पेश बो, भे पेश भो, ते पेश तो। दिस इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 था, सिंधी में किन भी बिन संगन जा नाला उर्दू या अंग्रेजी में बिन्ही लफ्जन जे तर्जुमे से अगर लिखो। बहुत सारे रिश्ते आपको सिखाए, कौन बताएगा कोई भी 2 रिश्ते मुझे सिंधी में? कोई भी 2 रिश्ते, कोई भी 2 रिश्ते सिंधी में, किसी भी 2 रिश्तों के नाम दोनों अल्फाज के उर्दू या अंग्रेजी तर्जुमे के साथ लिखें। मोहम्मद जलील साहब बताएंगे, फिर शादिया साहब बताएंगे। पहले जलील साहब बताएंगे। जी सर। सर पहला जो है वो सस, सस मीन सास और मदर इन लॉ। और दूसरा सर रिश्ता है देख के बता रहे हैं, याद नहीं है? फुफ्फड़, फुफ्फड़, फुफ्फड़ नहीं है, फुफ्फी का शोहर। फुफ्फड़, 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 फुफ्फी का शोहर। फुफ्फड़, हाँ फुफ्फड़, फुफ्फड़, फुफ्फी का फुफ्फड़, शोहर या अंकल। पे पे पग और पे पीतो रे माड़ी, फुफ्फड़, फुफ्फड़। बोलिए हरी अप सर, हरी अप। फुफ्फड़, ओके। फुफ्फड़ मींस बुआ का शोहर। थैंक यू वेरी मच। शादिया सराज साहब, कोई 2 रिश्ते अलग से इनके अलावा जो उन्होंने बताया उसके अलावा? सर नानो। नानो मींस नाना को कहते हैं। ओके। मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके। और डोट्रो, नवासा। डोट्रो, नवासा। ओके, आप ननियाल की तरफ चली गई। कोई ददियाल में से बता दे मुझे रिश्ता, कोई एक रिश्ता ददियाल। डाडो। डाडो, डाडो नहीं डाडो। बोलिए डाडो, बोलिए डाडो। डाडो, डाडो, डाडो। हाँ बोल तो सकती हैं, क्यों नहीं बोल रही? डाडो मीन्स दादा। दादा। और हाँ, और पोट्रो। पोट्रो, व्हाट इज पोट्रो? पोता। पोता, शाबाश, थैंक यू, वेरी गुड। तो बहुत सारे रिश्ते हैं जी, आपने पढ़ लिए मेरे ख्याल में 20 से ज्यादा हैं। चाचो इज चचा, डाडो इज दादा, जाट्रो इज दामाद, सोरो इज ससुर, पुत्र इज बेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनमें से 2 भी आपने लिखे विद ट्रांसलेशन। अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं लिखी, वैसे 2 नंबर हैं। ट्रांसलेशन नहीं लिखी और 2 सही लिख दिया आपने, तो 1 नंबर मिला आपको। मैंने कहा सवाल से पूछा करें भाई तुम क्या हो, सवाल की हैसियत समझ के उसका जवाब दिया करें, जल्दबाजी से काम ना लिया करें, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर लार्जर, मोर ग्रेटर, मोर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस। ये 10 सवालों को आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि सिर्फ बस ठीक है रन ऑफ द मिल। नो, दिस इज नॉट रन ऑफ द मिल, दिस इज समथिंग अ प्रिपरेशन फॉर मोर डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस। सवाल को समझिए, बोल्ड करके लिखा था मैंने कि उसके उर्दू या सिंधी तर्जुमे के साथ लिखें। पिछली बार आपने ये गलती की और इस बार भी बहुत सारे मेरे करम फरमाओं ने ये गलती रिपीट की है। डोंट रिपीट दिस सेंटेंस। सिर्फ चाचो डाडो जाटो सोरो लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका इंग्लिश या उर्दू में तर्जुमा लिखे। उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दोनों में तर्जुमा लिखा, लेकिन किसी एक में भी लिखते तो वो जवाब कंप्लीट दुरुस्त होता। तो वो जवाब आधा आपका गलत माना गया है अगर आपने उसके ट्रांसलेशन नहीं लिखा है। तो बेशक आपने वो सही रिश्ते लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है सिंधी, लेकिन उन्होंने भी ये गलती रिपीट की है। 7 नंबर सवाल था, आखिरी सवाल था, सिंधी में धुंधलो या ऊदो जो जिद कहिड़ो आहे। दिस इज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन। रैंडम का मतलब ये कि इसका मतलब जो भी आपके जहन में आए तो आपने लिख दिया। वो लफ्ज कौन सा था जो हमने पढ़ाया था? सिंधी में धुंधलो या ऊदो जो जिद कहिड़ो लफ्ज हूंदो। सिंधी में धुंधलो या ऊदो का मुतजाद लफ्ज क्या है? What is the opposite of the word vague or murky in Sindhi? Mohammad Jalil Sahab will tell me the correct answer to this. सर चिट्टो। Okay, Eileen Sahab will tell me. चिट्टो इसका वो है। कितना चिट्टो प्रोनाउंस कर रहे हैं आप उसको, बिल्कुल चिट्टो प्रोनाउंस कर रहे हैं आप। Eileen Sahab, can you tell me the answer to this? शाबाश जलील साहब। Eileen Sahab. Eileen Sahaba, Mavish Sahaba, Mavish Sahaba, can you tell me the correct answer to this? यस सर। सर गैर वाजे। गैर वाजे हमने नहीं पढ़ाया था, वैसे गैर वाजे सिंधी का लफ्ज भी नहीं है। Anybody else? ये मफहूम निकलता है, लेकिन I need the correct answer, correct तुज लफ्ज। Anybody else? Rabia Sahaba, can you tell me?
रबिया साहब, कैन यू टेल मी? यस सर। जी। और वाजे वाजे इज नॉट सिंधी लफ्ज, हमने वाजे पढ़ाया था। वाजे इज नॉट करेक्ट आंसर। वैसे इस्तेमाल तो हो सकता है, दीगर मतलब जब अरबी और फारसी के लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं तो इस्तेमाल हो सकता है। हमने पढ़ाया था चिट्टो, चिट्टो, चिट्टो पिट्टो, और जब जलील साहब ने प्रोनाउंस किया तो उनका प्रोनाउंस भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, चिट्टो था। ऐसे ही हर लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन जलील साहब आई नीड फ्रॉम यू एंड एवरीबॉडी। तो दिस वाज द लास्ट आंसर, द करेक्ट आंसर टू दिस, सही जवाब था चिट्टो, राइट। तो नाउ स्कोर्स, लेकिन स्कोर से पहले कुछ जो आपने गलतियां की हैं, अगर आप कंसेंट करें कुछ लोगों की, मैं नाम पुकारूंगा, अगर आप कंसेंट करें तो मैं यहाँ पर बयान कर लूँ, अगर कंसेंट ना करें, बहुत सारे लोग बुरा बनाते हैं सबके सामने आप गलतियां नहीं है, लेकिन यह है कि दैट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट, सम करेक्शंस। सो मैं नाम लूंगा, अगर आप वॉलंटियर करते हैं तो मैं यहाँ जिक्र कर लूंगा, वरना फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम से कहें कि आपको वो गलतियां बता दें। गलतियां हैं कहीं कहीं पर इम्प्रूवमेंट है, तो इफ़ यू कंसेंट, ठीक है, मैं नाम लेता जाऊंगा। इफ़ यू कंसेंट यू कैन रेज योर हैंड एंड आई मेंशन, क्योंकि उनका सुनना भी जरूरी है, उन्हें बुधण भी जरूरी है, जो गलतियां हैं तो उन बाबत उन जो बुधण भी जरूरी है, उन जो गॾु हुजण भी जरूरी है असां सां। सो इफ़ यू कंसेंट I'll mention those mistakes. इमरान ज़करिया साहब, इफ़ यू कंसेंट, अगर आप ये आपको बुरा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर जिक्र करूँ कि कहाँ कहाँ पर कमी बेशी थी, तो यू कैन रेज योर हैंड। If you are not raising your hand, I will not mention any of the mistakes. Mohammed Imran Zakriya Sahab. Okay, you are there to listen. Sir, आपने चारों स्किल्स लिख दी थी, ठीक है, चारों स्किल्स नहीं लिखनी थी। हमने जो ब्लैंक दिया था उस ब्लैंक में क्या आना था, ये सवाल था। मैंने अगर ये सवाल दिया होता कि which are the 4 लैंग्वेज स्किल्स, तो आपने चारों लिख ली होती, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमने पूछा था कि मतलब जो ब्लैंक्स थे उसमें वो जवाब आते थे, ठीक है। और जुमले, जो आपने जुमला लिखा है कि वहाँ के चुनाव तचो, उसमें अल्फाज मिले हुए थे, देयर वाज नो गैप, 2 या 3 जगहों पर गैप लाजमी था, अल्फाज मिले हुए थे। हमने उसको सही तो माना, 1 नंबर आपको दे दिया उसका, लेकिन उसको आप अलग अलग करके लिखें, क्योंकि जब अल्फाज मिल जाते हैं तो उनकी मीनिंग कुछ और हो जाती है, राइट। थैंक यू। सर कीबोर्ड का मसला है, मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। स्पेस तो होता है, स्पेस तो सब कीबोर्ड्स में होता है, अंग्रेजी में भी होता है स्पेस तो किसी में भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो एंटर करके एक एक लफ्ज अलग अलग लाइन पर भी लिख सकते हैं, तो ट्राई टू कवर इट। सर फिर वो अलहदा हो जाते हैं, लफ्ज खुद अलहदा हो जाते हैं, लफ्ज खुद अलहदा हो जाते हैं। मैं कुछ बहुत करता रहता। ओके, इफ दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम देन नो वरीज। आप उसको इजी सिंधी अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पर जुमला लफ्ज पूरा हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, तो इट्स ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, लेकिन यू मस्ट नो कि कहाँ पर लफ्ज पूरा हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आसिफ इकबाल साहब, इफ यू कंसेंट आई कैन only mention 1 point regarding your test results. Asif Iqbal sahab, if you are there. If you are not, Asif Iqbal sahab. Asif Iqbal sahab, गदलों की यानी ये जो सवाल था, ये आखिरी जो सवाल था, गैर वाज़े, धुंधलो या ऊदो का जिद जो है, धुंधलो इज गदलो, धुंधलो इज स्पॉइल्ड, धुंधलो इज पॉल्यूटेड, उसकी जिद भी आपने गदलो ही लिख दी। तो गदलो इटसेल्फ इज धुंधलो और ऊदो, तो उसकी जिद गदलो नहीं होगी सर, उसकी जिद चिट्टो होगी। आपने उसको गदलो लिखा था, तो प्लीज करेक्ट इट कि ऊदो या धुंधलो इज इटसेल्फ गदलो, यानी गदलों से मिलता जुलता है। वैसे धुंधला तो किसी फोक की वजह से भी हो सकता है, किसी ऐसी चीज से भी हो सकता है कि जो ज्यादा बुरी ना हो, लेकिन जो जब पॉल्यूटेड हो चीज तो उसका मतलब होता है गदलो। तो धुंधलो या ऊदो से मिलता जुलता मफहूम है गदलो। मैंने एंटोनियम पूछा था जो है चिट्टो, ही मींस वाज ट्रांसपेरेंट। तो दिस वाज द ओनली थिंग व्हिच आई वांटेड टू कन्वे यू सर। थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। रबिया साहबा, इफ यू कंसेंट, इफ यू कंसेंट रबिया साहबा। जी रबिया साहबा, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने एक तो थक को आपने लिखा था थक्कन, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी आपकी इमला की गलती थी, जिसमें थे आपने सही लिखा, थे थेलो सही लिखा, उसके बाद खे खट्टा आपने दिया जो उर्दू वाला काफ है, और उसके बाद ऋण वर्ण दे दिया। तो ये कोई भी लफ्ज नहीं बनता वैसे। थक्कण, इसको सिंधी में पढ़ेंगे थक्कण हो जाएगा। तो अगर आपने मसदर भी लिखना चाहा थक्कण, तो दरमियान में काफ सिंधी वाला होना चाहिए था।
वैसे इसका सही जवाब थक मैंने आपको बता दिया, मसदर इसका सही जवाब नहीं है। जिन्होंने मसदर का जवाब दिया था उनका भी हमने सही माना है वैसे, लेकिन कोशिश हो कि एक्यूरेट एग्जैक्ट लफ्ज जो है वो थक आपने लिखना चाहिए था। ये आपने नोट कर ली होगी कि आपकी गलती है, पहले ही आपने नोट कर ली होगी, राइट? यस सर। और पहरों के नाम जो है वो आपने, एक तो शाम लिखा है, शाम का जिक्र ही नहीं था, दोपहर और सुबह सादिक का जिक्र था। अगर शाम होता तो शाम उसमें आता। आपने एक ही उसमें ब्लैंक फिल किया जिसमें शाम लिखा था, जो कि गलत है। और पुप्फी में जो नुक्ते हैं आपने नहीं दिए थे ये में, जब सिंधी में लिखेंगे तो उसमें ये में नुक्ते देंगे। हमने सही तो मान लिया, लेकिन ये में नुक्ते सिंधी में आते हैं, आखिरी ये जब आती है या दरमियान में भी आती है तो उसमें नुक्ते जरूर होते हैं, राइट? तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको अगर कवर कर लेंगी तो दैट विल बी बेटर। थैंक यू वेरी मच रबिया साहबा। अफरोज साहबा, जेकॾहिं तव्हांजी मर्ज़ी हुजे ऐं तव्हां कंसेंट करियो त पंहिंजो हथ मथे करियो, न त मां हिनखे स्किप थो करे छॾियां, छाकाणि त तव्हांजो कंसेंट ज़रूरी आहे। घणनि माण्हुनि खे ॾाढो ख़राबु लॻंदो आहे त सभिनी जे साम्हूं जेकॾहिं ज़िक्र थिए। अफरोज साहबा, इफ़ यू कंसेंट मी आई कैन मेंशन, और अगर आप हाथ नहीं अपना उठाएंगे तो आई विल स्किप योर रिजल्ट, नॉट रिजल्ट तो बताई जाएगी, लेकिन उसमें जो गलतियां थी उनकी निशानदेही। चलें जनाब। करीम साहब, इफ़ यू कंसेंट मी, सिर्फ Yes, हिकिड़ी sir. पॉइंट है। करीम साहब, तव्हां रिश्तनि जे नालनि जो तर्जुमा न लिखिया आहे। तव्हां रिश्तनि जा नाला त सही लिखिया हाँ अथव। सर, वो तकड़ में रह गयो। हाँ, तकड़ हाँ में रहिजी। हाँ, हाँ, इहो तकड़ रह गयो। हाँ, इहो ॿीहर ख़्यालु हाँ, कजो त। मिस्टेक है हमेशा। हाँ सर, न मतिलबु इहो आहे त थोरो सवाल खे गौर सां पढ़ंदो त तव्हांजी उहा हिकिड़ी मार्क अचन था पर वो तकड़ में रह गयो सर। यकीनन अचनि था, मूं ई कोन चयो त नथा अचनि, त थोरो सवाल खे जेकॾहिं सम्झजे आराम सां। फज़ीला साहिबा, इफ़ यू कंसेंट मी, थैंक यू करीम साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। फज़ीला साहिबा, इफ़ यू कंसेंट मी आई कैन जस्ट पॉइंट आउट 2 पॉइंट्स। फज़ीला साहिबा, इफ़ यू कंसेंट मी Yes, sir. जी। मूं वाव जो चार्ट कोन चयो, तव्हां वाव जे चार्ट जी, वाव पेश जे चार्ट जी मश्क लिखी आहे। ऊ बू ऊ भू तू, इहो तव्हां लिखी, यादि आहे? मूं लिखी पेश जे चार्ट जी, यानी जी सर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जी वजह सां मूं सुबह सादिक जो तर्जुमो फजर कोन ॿुधायो। फजर सिंधी जो लफ़्ज़ बि कोन्हे, पर हूअं फजर जो वक़्तु ज़रूरु हूंदो आहे, पर उन जा सिंधीअ में जेके नाला आहिनि उहे आहिनि पिरे या बाक़, राइट? त इन शइ खे तव्हां ज़हन में रखिजो ऐं करेक्ट करे वठिजो, सही है? ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, welcome. Shazia Sir, जी सर। if you consent me, I can just point out 2 points. Shazia Sir, if you consent me, I can just point out 2 Yes, sir. points. एक तो आपने थक सही लिखा, पर आपने उसको क्रॉस कर दिया था। थक सही था, थक वाज करेक्ट, ठीक है? ऐसे ही था ना, थक को क्रॉस कर दिया जी था, सर। तो वो थक वाज करेक्ट। वैसे बिल्कुल। थकन या थकान भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन थक वाज करेक्ट, सो हमने उसको सही माना है। आपने जो लिखकर उसको मिटा दिया था, और आपने एक पहर जो है दोपहर का तर्जुमा नहीं लिखा था, एक ब्लैंक का आपने जवाब दिया था। शायद जल्दी में आपने दोपहर का तर्जुमा नहीं लिखा था, मंजन नहीं लिखा था। जी सर, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अच्छा, याद नहीं आ रहा था, इसलिए आपने छोड़ दिया। बस दीज वर द 2 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। आइलीन साहबा, इफ यू कंसेंट मी, देयर इज 1 पॉइंट ओनली, देयर इज 1 पॉइंट ओनली, आइलीन साहबा। If Eileen Sawa consents me, I'll mention about that 1 point. Otherwise, I'll move forward. Okay. Then Nadeem Sohu Saab. I think Nadeem Sohu Saab is not there today because more better the phone than Aluk hai, but he has not responded. Masood Ahmed Saab from Sangar. Masood Ahmed Saab, if you're there and if you consent me, you can raise your hand. Maqsood Ali Sahab, if you consent me, you can raise your hand. I can mention a few points. Yes. Maqsood Ali Sahab, Yes, are you sir. there? Maqsood Ali Sahab, are you there? Yes, sir. बस हिकिड़ी पॉइंट आहे त इहो जेको उदो जो या जेको आख़िरी असांजो सुवाल हुयो, जंहिंजो ई जवाबु तव्हांजे साम्हूं आहे, उदो या धुंधलो जो असां कॾहिं बि साफ़ सुथरो कोन पढ़ायो आहे। ज़िद इहो तव्हां अज्यूम करे वरितो, हूअं त ख़ैर साफ़ सुथरो दुरुस्त आहे, बट जेको एक्यूरेट या एग्ज़ैक्ट या तुज़ लफ़्ज़ जेको आहे उहो आहे चिटो, ठीकु आहे? इहो असां पढ़ायो आहे, त इहो तव्हां जेको लिखो आहे त इहो that would have been correct and more appropriate. Thank you very much. Mohammed Hamza Sahab, if you consent me, सिर्फ एक पॉइंट है आपका, वैसे तो आपका शानदार टेस्ट था, लेकिन I have requested you to, Hamza Sahab, are you there? जी Hamza Sahab, please unmute yourself. Just a request to write your answers with black pointer or black pen. क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, कभी ग्रीन में लिखा होता है, कभी रेड में लिखा होता है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको पढ़ने में। वैसे तो आपका टेस्ट शानदार था,
रिजल्ट्स अभी आएंगे आपके सामने, लेकिन आप ब्लैक पेन से काइंडली इसको लिखिए तो पढ़ने में आसानी होगी, राइट? सर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह केयरफुल Thank you, Mohammed Hamza Saab, and excellent. Your test is excellent. Asif Mahmood Awan Saab, are you there? There are a few things which I have to point out, and if you consent, you can raise your hand. If you're not, then we will move to the results. Asif Mahmood Awan Saab, either you are not there, either you don't consent. Okay, sir. We respect for your consent, and we are moving forward towards scores. Right? The scores of yesterday's test are as रिवर्स ऑर्डर में हम शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पर 11 हमारे मेहरबान है। मसूद अहमद साहब फ्रॉम सांगड़ इज 2.5। आपने देख लिया होगा की रोशनी में, वैसे कल ही आपने चेक कर लिया होगा कि कौन कौन सी जो है वो गलतियां थी आपकी, और उसकी रोशनी में आपने देख लिया होगा कि कितने मार्क्स होंगे। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आर देयर। मसूद अहमद साहब 2.5, आसिफ महमूद अवान साहब 3.5, जीशान अहमद साहब 3.5, मोहम्मद फैजान अहमद साहब 4, अफरोज साहिबा 5। कुछ अड़ा सवाल जवाब है जेके तव्हां खां असांखे उम्मीद है तव्हां ॾींदव, पर अलाए छो तव्हां कोन ॾेई सघिया। फज़ीला कासिम साहिबा 5, फाइज़ा मुस्तफ़ा साहिबा 6.5, मोहम्मद जलील साहब 7, 6.5 का मतलब है 5.5, मोहम्मद जलील साहब 7, रबिया साहिबा 7, नदीम सोहू साहब 8, माविश एजाज साहिबा 8, right? Moving to the next slide. मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब 8, आसिफ इकबाल साहब कराची से 8.5, मोहम्मद शजील साहब 8.5, आयशा तारिक साहब 9, शादी असरार साहब 9, करीम साहब 9, मकसूद अली साहब 9, आयशा खान साहब 9, मोहम्मद हमजा साहब 9.5 एंड आइलीन साहब 9.5। मुझे खुशी होती कि ये 0.5 कम ना होता, और मेरे वो मेहरबान के जिनके 9 नंबर आए उनका ये 1 पॉइंट कम ना होता, ये तमाम जो है वो 10 में आ जाते। लेकिन बहरहाल दिस इज द स्कोर एंड यू कैन ऑलवेज अपील इफ यू थिंक दैट इन द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन कोई ज्यादती हुई आपके साथ, तव्हां जिते सम्झो था तव्हां सां को वेसाघाती थी या तव्हां सां को जुल्म थियो आहे, यू कैन ऑलवेज अपील एंड यू कैन रेज योर हैंड हेयर, और यू कैन कॉन्टेक्ट द एडमिन कि हमने इस सवाल का सही जवाब दिया था, उसका गलत जवाब दिया है। वैसे मैंने थॉरली कोशिश की है कि अगर थोड़ी बहुत गलती है तो उसको सही माना है, अगर ज़्यादा गलती है, ज़्यादा गड़बड़ है, तो उसको आधे मार्क्स जो है वो उसमें कम हुए हैं। लेकिन इफ़ यू स्टिल थिंक कि किसी सवाल के जवाब में कोई आपके साथ ज्यादती हुई है, तो यू कैन ऑलवेज रेज योर वॉइस, और हमारे ग्रुप के एडमिन को आप हमेशा बता सकते हैं कि भाई ये गलती यहाँ पर हमारी नहीं हुई और हमारे नंबर कटे हैं, राइट? तो look at these slides, both slides. This is slide number 1, again, your scores. This is slide number 2, and that will be included in the PDF, which will be shared with you shortly. तो उसमें आप देख लीजिएगा, right? तो उसके बाद मैं एक बार फिर रिमाइंड करवाता चलूँ कि 2 दिन हम नहीं मिलेंगे, तो आखिर में रिमाइंड करवाता चलूँ कि पोस्टर असाइनमेंट अगले हफ्ते के लिए, पोस्टर असाइनमेंट इन द हफ्ते ला, पोस्टर असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट वीक, उसके रूल्स ये लिखे हुए हैं, how to design it ये लिखा हुआ है, and last date is Sunday, February 12, 2024, 11:59 p.m. This is a soft reminder to you, and this is also a soft reminder. आप सबको ये soft reminder है कि कल और परसों हमारी मुलाकात नहीं होगी। कल शब महराज है, तो उस वजह से यकीनन आप सब तैयारियों में होंगे, उनकी शाम का वक्त है, और इबादत का सिलसिला भी होगा। परसों जो है वो जनरल इलेक्शंस हैं पूरे मुल्क में। इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए दुआएं हैं आप सबकी भी, हमारी भी। तो वी विल मीट ऑन फ्राइडे। टुमारो आई विल बी शेयरिंग विथ यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम टेलिंग यू एन आर्टिकल। आई विल शेयर विथ यू एन आर्टिकल इन शेप ऑफ ऑडियो कॉलम। वो शायद उस रात की रिलेवेंस भी हो और हमारे स्कोर्स की रिलेवेंस भी हो, ठीक है? दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। उसको सुनिएगा, 10, 11, 12 मिनट का है, एक कॉलम है। मैंने लिखा था 2016 में, नवाए वक्त में एक कॉलम आता था मेरा, अगर मगर मुबादा के उन्वान से। तो ये उसमें शाया हुआ था। उसके बाद उसका सिंधी तर्जुमा काविश मैगजीन में शाया हुआ। उसका उर्दू तर्जुमा जो है वो क्या लिखा है आपने मकसूद अली साहब? मैं नहीं समझा आपको, आपकी आवाज़ आपकी बात नहीं समझा। If you are joking, we can joke for some time, some other time.
बिकॉज उसके बाद जो आइकॉन था आपका वो कुछ जोक वाला था। मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ सर, मैं कुछ संजीदा बात कर रहा हूँ, तो अगर संजीदगी का मूड है तो मेरी बात सुन लीजिए, वरना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन मेक जोक्स सम अदर टाइम। सो आई वाज, एक तो ये चैट को अवॉइड किया करें, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर आई कैन नॉट रीड योर चैट, ओके। या तो मैं आपसे बात करूं या तो मैं चैट को रीड करूं। और दूसरा, जब ये पॉपअप होती है तो दैट ब्रेक्स माय टेम्पो। आई वाज ऑन सम अदर फ्लोर, आई वाज ऑन सम अदर यू नो हाइट ऑफ थॉट, और दरमियान में आपकी गैर संजीदा जब बात आ जाती है तो was that so much necessary? I was just telling you about an important column. If you're not interested in that, leave that, sir. उनको सुनने दीजिए जो उसमें इंटरेस्टेड हो। शायद मैं बात कर रहा हूं इस सरजमीन की। पहली बात तो ये चैट को अवॉइड कर लीजिए, डोंट यूज योर चैट, क्योंकि आई डोंट रीड चैट्स एंड माय टीम डजंट हैव टाइम टू रीड चैट्स। आई एम हियर टू speak to you. If you have to speak, you must raise your hand and you just unmute and you talk to me. I don't have time to go through the chats, okay? अब आपने पूरा टेम्पो डिस्टर्ब कर लिया। I was telling you something else and you are on some other you know height, you are some other elevation. So इस सरजमीन सिंध का ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है, सच के साथ, सिद्क के साथ, ओके। और जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो इस्लाम का ज़हूर इस सरजमीन सिंध पर, यानी ये सरजमीन सिंध वो खित्ता है कि जिसने इस्लाम के ज़हूर को सबसे पहले कबूल किया, और ये अरबों के यहाँ पर हमले से बहुत पहले था। इसलिए इस सरजमीन को जो बाबुल इस्लाम का नाम दिया जाता है, अरबों के इन्वेजन के बाद वाला, उस बात को रद्द करने वाला एक कॉलम है जो कि दैट शोज, असल में उस कॉलम का उन्वान है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंध के साथ ताल्लुक, उनका और उनके रफ़क़ा का और उनके अहले बैत का सिंध के साथ ताल्लुक क्या रहा। ठीक है, दैट्स अ कॉलम, दैट्स एन ऑडियो कॉलम. So we will be sharing it with you tomorrow. I will be sharing with you a link tomorrow, and if you are interested, you can go through it. हो सकता है कुछ points आपको इससे मिले, because since you are learning the language of the land and we are talking about this land and we are talking about the importance and significance of this land, और इस सरजमीन की हिन सरजमीन जो सच असां जेको ताल्लुक आहे केतिरो पुराणो आहे, अरबन जे ते चढ़ खां घणो पुराणो आहे, that shows only this. 12 मिनट का कॉलम है. इफ यू हैव टाइम, कल की रिलेवेंस रहेगी. आप अगर सुनेंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि नई चीज़ें आपको मालूम हो, और सकता है कि उनमें से बेशतर चीज़ें आपको पहले से मालूम हो. अगर मालूम नहीं है तो वो मुख्तलिफ मुस्तनिद इस्लामी तारीख की कुतुब के हवालों की रोशनी में वो कॉलम है, और बहुत इसको पसंद किया गया है, तो आप उसको देखिएगा. हो सकता है एक आध नई चीज़ें आपके लिए हों. यू आर ओरिजिनली यू आर स्कॉलर्स, यू नो मोर देन मी. मैं एक हम्बल स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का भी और लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का भी. तो आई होप एंड आई बिलीव के यू ऑल नो मोर देन मी, लेकिन एक हम्बल सबमिशन है. हो सकता है कि उसमें कोई नई चीज़ आपके लिए हो, कुछ नई चीज़ें आपके लिए हो, तो उसको अगर आप कल सुनेंगे तो उसकी रिलेवेंस भी रहेगी, कल की रात की मुनासबत से भी, इस सरजमीन की मुनासबत से भी, और हो सकता है कुछ हैरत अंगेज चीज़ें भी आपके पास हों, आपके जानने के लिए उसमें मुंतज़र हों. तो आई विल हैव योर फीडबैक ऑन फ्राइडे अबाउट दैट कॉलम. वो बरसबील जिक्र मैंने कल मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उसको शेयर करना अप्रोप्रिएट रहेगा, रिलेवेंट रहेगा कल की रात की मुनासबत से. सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू, इफ़ यू डोंट हैव टाइम सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो कल इंशाल्लाह और परसों आप रिलैक्स कीजिए, पोस्टर पर काम कीजिए, अपनी मसरूफियात को वक्त दीजिए. हम मिलेंगे जुमे को शाम 5 बजे 5 PM ऑन फ्राइडे. और जब फ्राइडे का लेक्चर होगा तो उसमें टोटल स्कोर्स भी आपको बताएंगे, एंड वी विल बी रिवाइजिंग द सेकंड पार्ट ऑफ की जदवल, यानी हम डिटेल में अल्फाज का जिक्र करेंगे और फिर मंडे को हम उसकी मश्क करेंगे. राइट, so this is a time to say you goodbye, and I hope that the this learning pace will not stop anywhere and will not reduce anywhere. So if you have any reflections, if you have any feedback, you can always extend to me or to the admin of the WhatsApp group. Thank you so much. This is me, Yasir Qazi, signing off from this class number 28 of Sindhi Language Learning by Sindhi Language Authority. So take care, goodbye and Allah Hafiz. Dilim karte judai kare vinay, sadai ke jina pe tena khair. Allah ne ke baad.